Hello, everybody, and hello, students. I thank all of you for joining me in this lecture. This lecture is for Earth magnetism. It's a very fabulous lecture, and you will get a lot of information, lots of information, many things which is new for you. So you should put a lot of attention for this lecture, and this is the midpoint of this particular unit, magnetism and matter. आप इस लेक्चर को अगर अच्छे से समझते हैं तो आगे के टॉपिक बड़े अच्छे से समझ पाएंगे एंड डेफिनेटली इसको समझने के लिए आपको यूनिट 4 और यूनिट 5 के जो लेक्चर्स इसके पीछे वाले पहले वाले हैं वो आपको देखे होने चाहिए देन ओनली इट विल बी बेटर फॉर यू सो आई टेक यू इन लेक्चर एंड I'll serve you from my best of knowledge and I hope you will be benefited. So let's enter. So focus of this lecture is like what made us think Earth has its own magnet. So what are the evidence which suggests us that Earth has its own magnet? This is what we are going to talk about. And possible cause of Earth magnetism. भाई अर्थ के पास जो ये मैग्नेट है उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन भी तो होना चाहिए. So possible cause of Earth magnetism. Then we'll be talking about what is meridian and its type. What is angle of declination, angle of dip or angle of inclination. These things we have to study. And then Earth's magnetic field और न्यूट्रल पॉइंट इन दोनों का ऑर्डर चेंज भी हो सकता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टीचिंग और हो सकता है कि ऑर्डर सेम भी रह जाए. तो we'll see it how it is, how it comes, how the lecture gets built up and all that. उसके अकॉर्डिंगली पता चलेगा मैं. So let's go one by one on the next pages and see what information we have. So let me take you to the next page and discuss about this. What made us think Earth has its own magnet? चलो अगले पेज पे चलते हैं हम लोग. So we would say that factors, I mean facts which becomes evidence, evidence in favor of Earth magnet, in favor of Earth, in favor of Earth's magnet. So what I'm discussing here is see, there are certain facts which we face in daily life, which is a kind of evidence in favor of Earth's magnet. So let's study one by one. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो हम लोग ये जानते हैं कि a freely suspended magnet, a freely suspended magnet freely gets aligned line along GNGS, geographic north और geographic south की तरफ. A freely suspended magnet gets aligned along GNGS. Why? ऐसा क्यों है? Why always GNGS? Why along GNGS gets aligned? Always a freely suspended magnet gets aligned always along GNGS. तो ऐसा क्यों है? दिस इज द फर्स्ट फैक्ट. ये फैक्ट है बट हमें इस बात को समझना होगा. दूसरी बात ये कि अगर आप एक बार मैग्नेट ले करके और उसका एक बार मैग्नेट लीजिए और उस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए. जब एक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है. आई वुड शो लाइक दिस. सपोज मैंने एक बार मैग्नेट लिया और इस बार मैग्नेट के अराउंड ऐसे जब मैं चला तो कोई एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी. लेट सपोज यहाँ पे एक ऐसा पोजीशन आ गया, इस जगह पे एक ऐसा पोजीशन आ गया कि अगर यहाँ पे कोई निडल, मैग्नेटिक निडल है, इफ देयर इज अ निडल, सो आई फाइंड दैट कि वो निडल किसी भी डायरेक्शन में ऐसे रख दो
तो भी अलाइन हो जाती है, ऐसे रख दो तब भी अलाइन हो जाती है। मीन्स ये नेट बार मैग्नेट के अराउंड किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ये देखते हैं कि जो मैग्नेटिक हमें जो कंपास की जो निडल है वो किसी भी डायरेक्शन में अलाइन हो सकती है, ऐसे अलाइन हो सकती है या वो ऐसे अलाइन हो जाती है। दिस कैन गेट अलाइन लाइक दिस ऑल्सो, दिस कैन गेट अलाइन लाइक दिस ऑल्सो। वो ऐसे भी अलाइन हो जाती है, इस तरीके से भी अलाइन हो जाती है। सो द आइडिया इज दैट कि व्हाई इट हैपेंस, होता क्यों है ऐसा, व्हाई इट हैपेंस। सो द पॉइंट इज व्हाट आई एम सेइंग दैट कि while while magnetic field lines field lines while magnetic field lines of a bar magnet, magnetic field lines for a bar magnet for bar magnet is being mapped, is being mapped, we find a place, we find places places around bar magnet where where needle of magnetic compass does not align in any particular does not align in any particular direction, in any particular direction, does not align, does not align, not छोटा था, does not align in any particular direction, किसी particular direction में align नहीं होता। why so? मतलब अगर आपने ये मान लिया जाए कि यहाँ पे साउथ है और यहाँ नॉर्थ है और आप इसके लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, लाइंस ऑफ फोर्स कहना गलत है, जब इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तो इसके अराउंड कोई एक ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं जहाँ पे अगर कंपास लेके जाओ तो वो निडल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइन नहीं होती, किसी भी डायरेक्शन में रह जाती है, जिसे छोड़ दो उधर ही रह जाती है। जबकि बाकी जगह पे यूं इस पॉइंट के अलावा कहीं और चले जाए तो ऐसा नहीं होता, बाकी ऑल अदर पॉइंट्स पे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो अलाइन होती है। So why it is happening like this? Now next point is कि अगर एक rod of magnetic substance like iron, nickel, cobalt, right? A rod of magnetic substance, if buried in if buried deep inside earth, deep inside earth for a long time, for a long time, and taken out, it it shows magnetism. It shows magnetism. It shows magnetism afterwards. बाहर निकालने के बाद वो मैग्नेटिज्म शो करता है। तो ऐसा क्यों है भाई? तो दीज आर द फैक्ट्स लाइक विच वी सी इन डेली लाइफ, ये हो रहा होता है। तो आप इसके पीछे कारण क्या सोचेंगे कि भाई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइन हो रहा है, कि ये बार मैग्नेट के अराउंड ऐसा जब हम ढूंढते हैं तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं निडल टिक करते, इसको हम लोग इन पॉइंट्स को न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। सच पॉइंट्स आर न्यूट्रल पॉइंट्स, सच पॉइंट्स आर न्यूट्रल पॉइंट। पढ़ेंगे हम लोग, इसके बारे में भी बात करेंगे आज की क्लास में। सच पॉइंट्स आर न्यूट्रल पॉइंट्स, तो ये न्यूट्रल पॉइंट्स कहलाते हैं। तो ऐसा क्यों मिलता है हमें और व्हाई दिस हैपेंस? कि अगर आप मैग्नेटिक मटेरियल का रॉड लीजिए और काफी लंबे टाइम तक बरीड करके और फिर उसको बाहर निकालिए तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर आती है भाई, वो किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। So these are the facts which somehow says us that Earth should have its own magnet। क्योंकि देखो ये हवा में जो आप लटकाए रखे हो या
बार मैग्नेट के पास है, ये सब अर्थ सरफेस के आजू बाजू घटना है. This all phenomenon is taking place like this is happening within Earth. This is like bar magnet we are keeping on Earth's surface and then we are drawing. And a fully suspended magnet Earth से 2-4 फीट हाइट पे या 2-4-10 फीट हाइट पे हम कर रहे हैं. So this is all happening near about Earth or Earth's surface. So definitely we have to find some reason कि भाई इनके होने के पीछे का कारण क्या होना चाहिए, यानी कि अर्थ के पास कोई मैग्नेट होना चाहिए, क्योंकि हमने बार मैग्नेट में पढ़ लिया है जो फर्स्ट लेक्चर इसका था कि भाई एक हमें दो मैग्नेटिक सब्सटेंस है और एक का नॉर्थ साउथ है, दूसरे का भी नॉर्थ साउथ है, और लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं. वो सारी बातें हमें मालूम है. तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उससे तो हमें यही लगता है कि अर्थ के पास मैग्नेट होना चाहिए. जब हमने ये सब कुछ समझ लिया कि भाई ये फैक्ट्स है, तो नाउ वी नॉट ओनली दिस, कुछ और एक और भी फैक्ट मैं आपको बता सकता हूँ. Let me put some another fact here. Like, or we can say that कि uh, near about like अंटार्कटिका में का जो अंटार्कटिका सर्किल है, यानी कि समवेयर लाइक मेलबोर्न और ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जब पास पास जहाँ पे आ रहा है, मेलबोर्न की बात करें या नॉर्थ कनाडा में टोरंटो की बात करें, तो उन दो जगहों पे जो मैग्नेटिक नीडल का जो बिहेवियर है वो बहुत ही डिफरेंट है. ये पॉइंट मैं लिखना चाहूंगा आपको, तो जरा आप देखिए उस बात को समझिए. लाइक मैं यहाँ पे आपके आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं दिस ये पॉइंट ले लिया, एक एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, और इनको आपस में ज्वाइन कर दिया. इनको हमने ज्वाइन कर दिया, दो पॉइंट. ठीक है, इससे हटा के ऐसे ज्वाइन कर देते लाइक दिस. और अब अगर हम यहाँ पे कोई अ, इस पर्टिकुलर जगह पे, यहाँ पे अगर हम वी वी कीप लुक एट दिस हियर, अगर हम यहाँ एक निडल एक कंपास रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ निडल कुछ ऐसे अलाइन होती है और यहाँ निडल कुछ ऐसे अलाइन होती है. लेट्स सपोज समथिंग लाइक दिस. दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग. सो सी व्हाट आई एम सजेस्टिंग, कि आई एम सजेस्टिंग दैट कि ठीक है, ये अर्थ का वो एक्सिस है जिसके अबाउट रोटेट करिए, एंड लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे टी वर्ड लिखा, आई एम राइटिंग टी टोरंटो, एंड दिस आई एम राइटिंग मेलबोर्न. अगर हम टोरंटो शहर में जा करके अगर मैग्नेटिक कंपास को ले जाएं और उसको कुछ इस तरीके से रखें कि वो वर्टिकल प्लेन में उसका, लेट मी मेक फॉर यू, सपोज हमने ऐसे रखा और अब इसके अंदर आई एम सेइंग यहाँ से ये ऐसे दिखा है, बोला हेलो, इसका निडल जो है इसमें इसको ऐसे बना दिया. तो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि ये एक कंपास हमने यूज किया है. लुक एट दिस. ठीक है, ये कंपास यूज कर रहा हूँ मैं. ठीक है, और ये कंपास कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये जो निडल है इसके ऊपर, ये वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट आई मीन वर्टिकल प्लेन में फ्री मूव करने के लिए. जब यहाँ लेके आते हैं तो पता चलता है कि इस कंपास का जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल वो इधर चला आ रहा है, और जब यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो कंपास का साउथ पोल यहाँ पे आ जा रहा है, नॉर्थ यहाँ आ जा रहा है, ये ऐसे हो जा रहा है. सो दिस हैपनिंग लाइक, सो व्हेन व्हेन निडल ऑफ आई मीन ऐसे लिखते हैं व्हेन के बजाय, या व्हेन निडल इज allowed allowed to move freely move freely in vertical plane. When needle is allowed to move freely in vertical plane, then at at some place at some place
of North Canada, and at some place of Melbourne, needle needle align gets aligned as shown as shown. So why this happens? When needle is move freely uh, allowed to move freely in vertical plane. So जनरली हम लोग निडल को कैसे अलाउ करते हैं, मैं आपको यहाँ पे ये बात भी आपको दिखाना चाहूंगा ताकि देख सके आप अच्छे से और समझ सके. लेट्स सपोज हमने यहाँ पे एक ये रखा और कंपास के लिए. सो व्हाट यू सी हियर, जरा यहाँ देखिए आप, ये कंपास जो है कुछ इस तरीके से है कि दिस कैन निडल कैन मूव फ्रीली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड यहाँ पे निडल कैन मूव फ्रीली इन वर्टिकल प्लेन. तो कंपास को ऐसे भी रख सकते हैं और कंपास को ऐसे भी रखा जा सकता है. आई होप यू गॉट माई पॉइंट, राइट. सो ये निडल देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये इसका साउथ साइड है, ये इसका नॉर्थ साइड है, तो ऐसे अलाइन कर सकता है, यानी कि फ्रीली मूव कर सकता है. तो मैं सपोज कर लो इस तरीके का ये जो निडल है ये उठा के यहाँ लेके आऊँ, तो इसका नॉर्थ जो है ऐसे पॉइंट कर जाता है और इसका साउथ यहाँ पे आ जाता है, नॉर्थ ऐसे पॉइंट कर जाता है इन जगहों पे. सो व्हाट यू सी हियर, व्हाट यू सी इज दैट when needle is allowed to move freely in vertical plane, then at some place of North Canada, and at some place of Melbourne, needle gets aligned as shown. Why? So this is what we are trying to say, that these facts like 1, 2, 3 and 4, ये जो facts हैं, ये facts हमें क्या बताते हैं कि कहीं ना कहीं अर्थ के अंदर ही मैग्नेट होता होगा, तभी तो ऐसा हो रहा होगा ना भाई. दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग. तो इस तरीके से हम लोगों ने इन 1, 2, 3 और 4 पॉइंट्स के वजह से, राइट, हम लोगों ने ये माना कि अर्थ के पास मैग्नेट होना चाहिए. सो आई एम राइटिंग ऑन दिस फोर दिस फोर facts suggests that four facts suggest that earth earth should have its own earth should have its own magnet. earth should have its own magnet. और जब हम इस बात को सोचते हैं तो फिर नेचुरल मैग्नेट जो हमें मिला, जो मैग्नीसिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर और उन जगहों पे मिला, तो वी फाइंड दैट कि दोज आर दोज प्लेसेस जहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शंस बहुत ज्यादा होता है, लावा फटने का या ज्वालामुखी फटने का जो जो फेनोमेनन होता है, जिन जगहों पे बहुत ज्यादा हो रहा है उनके आजू बाजू ही हमें नेचुरल मैग्नेट की फाइंडिंग हुई. तो दिस टेल अस दैट कि समहाउ लाइक अर्थ के अंदर से ही वो नेचुरल मैग्नेट बाहर निकल के आया होगा, उसकी ही कुछ पीसेस बाहर होंगी, आई मीन कुछ मटेरियल उसी तरीके से आया होगा. सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से दैट कि दिस फोर फैक्ट्स सजेस्ट दैट अर्थ शुड हैव इट्स ओन मैग्नेट, एंड जो नेचुरल मैग्नेट की जो फाइंडिंग थी, जो वो ओर्स थे उनके उनके मिलने का जो रीजन था, राइट, वो भी ऑलमोस्ट वॉल्केनिक एरप्शंस जहाँ ज्यादा होते थे उनके आजू बाजू हमें वो ज्यादा मिले. तो इन सारी बातों को अगर एक साथ क्लब करके और फिर स्टडी किया जाए तो ये पता चलता है, या ऐसा महसूस होता है कि अर्थ के पास अपना खुद का मैग्नेट होना चाहिए. देन लोगों ने इसके एक्सप्लेनेशन ढूंढने स्टार्ट किए कि आखिर ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि अर्थ के पास मैग्नेट है, तो डेफिनेटली अर्थ के पास मैग्नेट है तो उसका एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल होना चाहिए. जैसे कि तो हम लोगों ने ये जो कनाडा में, आई मीन टोरंटो के पास एंड मेलबोर्न में जो ये चीज फाइंड आउट की, ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो गई कि हम लोग ये मानने के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो गए कि अर्थ के पास अपना एक मैग्नेट होना चाहिए और उसके अपने मैग्नेटिक पोल्स होने चाहिए. इधर हो गया नाम, या T4 टोरंटो है और M4 मेलबोर्न
का सिग्निफिकेशन है। आई होप यू गॉट इट नाउ। हो सकता है कि बहुत सारी किताबों में टोरंटो और मेलबोर्न का जिक्र ना हो, क्योंकि पोल्स जो है ना एक जगह पे फिक्स नहीं होती है, धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं। ये जो लाइन बोल रहा हूँ इस पे बहुत ध्यान से देखिएगा कि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे अभी अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है और यहाँ अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। आई सेड लाइक दिस। तो ये यही फिक्स नहीं रहेगा, ये थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। दिस विल कीप ऑन चेंजिंग एंड फाइनली इसके कुछ सालों बाद इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। इट हैपेंस लाइक दिस। तो अब बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। वैसे इनको पढ़ने के लिए एक अलग ब्रांच है, जियो मैग्नेटिज्म। जियो जियो मैग्नेटिज्म एक अलग ब्रांच ही है और उसमें बहुत सारी चीजें हमें पढ़ने को मिलती हैं। तो अभी आपको मैं जो बताना चाह रहा था कि अर्थ के पास अपना एक मैग्नेट होना चाहिए, उसके एविडेंस में जो चीजें बातें रखी गई वो भी समझ गए और हम ये मानने के लिए तैयार हो गए कि अर्थ के पास एक अपना मैग्नेट होना चाहिए और है भी। और उसके पोल्स के बारे में हमने छानबीन करने पे हमें ये पता चल गया भाई ठीक है, यहाँ और यहाँ ये पोल्स हमें मिला है। तो अब अर्थ के मैग्नेट के होने का कारण क्या हो सकता है, तो पॉसिबल कॉज की बात हो रही है। सो दिस इज लाइक पॉसिबल कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अब आपने यहाँ पे देखा अच्छे तरीके से कि मैंने यहाँ पे पॉसिबल कॉज की बात की है। so, you know till now there is no certain कोई आज तक कोई इतनी साफ बात नहीं सामने आई है जिसको हम लोग एक फैक्ट के तरीके से एक्सेप्ट कर लें कि ओके यही वजह रही होगी अर्थ के मैग्नेट क्या। तो अभी तक कोई बहुत क्लियर फैक्ट नहीं है। तो पॉसिबल कॉजेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें कुछ दो तीन इंफॉर्मेशन समझनी होंगी। लाइक जो बताया गया। सो नंबर वन इज, तो सबसे पहले बात तो ये है कि ये समझा गया कि अर्थ इज लाइक, फर्स्ट पॉइंट इज लाइक अर्थ इज मेड ऑफ atoms atoms or molecules. Like earth is made of atoms and molecules, and we know that and we know that earth rotate about its own axis. Earth is made of atoms and molecule, and we know that earth rotate about its own axis. Therefore these atoms or molecules rotate about the same axis about the same axis same axis. Since atoms or molecules have positive and negative charges. Therefore these charges also go for circular motion circular motion about the same axis of rotation, which causes or constitute current carrying loop current carrying करंट कैरिंग लूप। समझ में आ रही बात क्या गा रहा है? अर्थ एटम और मॉलिक्यूल का बना हुआ है, और अगर अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो अर्थ के अंदर जो एटम और मॉलिक्यूल हैं वो सब के सब क्या हो रहे हैं, उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। और जब वो उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो अर्थ के अंदर का जो एटम का नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज है दैट इज ऑल्सो गोइंग इन सर्कुलर मोशन। जब वो सर्कुलर मोशन में जा रहे हैं तो वो करंट कैरिंग लूप बनेंगे एंड करंट कैरिंग लूप अगर होगा, so we know that current carrying current carrying loop
causes. We know that current carrying loop is is responsible for magnetism, for magnetic dipole, magnetic dipole. Okay, and we know that current carrying loop is responsible for magnetic dipole और magnetism. तो ये बात बता दी गई कि पहला तो ये कॉन्सेप्ट हो गया. दूसरी बात जो बताई गई कि अर्थ हैज हैज lot of metallic ions. Earth has lot of metallic ions in its central core. In its central core. Earth has lot of metallic ions in its central core in in liquid form. In liquid form. Earth has lot of metallic ions in its central core in liquid form, known as magma. Magma. So when Earth rotates about about its own axis, these metallic ions rotate. These metallic ions have circular motion. When Earth rotates about its own axis, these metallic ions have circular motion, and this constitute current carrying loop. Current carrying loop. Which may be cause of which may be cause of Earth's magnetism. तो एक फैक्ट ये भी हो गया. एक तीसरा फैक्ट भी बताया गया जो कि बहुत बेहतरीन नहीं था. वो कुछ इस तरीके से कि अर्थ के आजू बाजू जो we know that Earth has atmosphere. We know that Earth has atmosphere, and this atmosphere is having many free ions due to cosmic rays. We know that Earth has atmosphere, and this atmosphere is having many free ions due to cosmic rays, which ionize gases of atmosphere. So due to cosmic rays, which ionize gases of atmosphere, we know that Earth has atmosphere, and this atmosphere is having many free ions due to cosmic rays. These ions go for circular motion. When Earth goes for revolution. These ions go for circular motion when Earth goes for revolution about its own axis.
goes for rotation about its own axis. यहाँ पे rotation लिखना अच्छा रहेगा. Rotation about its own axis. So these ions circular motion, these ions circular motion must be constituting current carrying loop, which may be cause of earth magnetism. So out of this all three, like 1, 2 and 3, right? सबसे जो right ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रोफेसर ब्लैकेट का दिया हुआ है. प्रोफेसर ब्लैकेट थ्योरी. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, this concept is widely accepted. This is more accepted. कुछ लोग लाइक आप अपनी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ेंगे तो वो इन पे ज्यादा जोर देती है एज पर एनसीईआरटी. आई मीन कुछ लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. सी देयर आर वेरियस अदर रीजन आल्सो जिसको मतलब आई मीन वेरियस अदर रीजन्स हैज बीन स्टेटेड बिहाइंड अर्थ मैग्नेटिज्म. बट इसमें से कौन सबसे बेहतरीन है या कौन एक्चुअल रीजन है, अभी इसके बारे में बहुत ही गारंटी के साथ या बहुत ही एश्योरेंस के साथ नहीं कहा जा सकता है. बट दिस इज हाउ इसीलिए मैंने लिखा है पॉसिबल कॉजेज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म. तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि अर्थ के पास, अगर हमने ये एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया अर्थ के पास मैग्नेट होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, ये वजह थी. और अर्थ के पास मैग्नेट है तो माने क्यों है ऐसा, हमने ऐसे सोचने इस तरीके से सोचना स्टार्ट किया. और फिर हमने अर्थ मैग्नेटिज्म के जो कॉजेस के बारे में बात किया, इसके बारे में बात की. अब हम आपको सीधे ले चलेंगे like these two facts we have done it. Now we'll talk about what is meridian and its type. ये बात बताने के पहले मैं आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन अर्थ मैग्नेट के बारे में देना चाहूंगा और फिर हम लोग आगे चल के बात करते हैं इसके बारे में. So let's go to here. I have like छोटा सा आपके लिए like this is Earth's magnet. मैग्नेट की बात हो रही है, अर्थ मैग्नेट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. सी दिस इज आवर अर्थ. और हमें मालूम, मैंने कि अर्थ अपने जो एक्सिस पे थोड़ी टिल्टेड होती है. सो दिस इज व्हाट एक्सिस आई हैव शोन. इस एक्सिस के अबाउट अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है. अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस लाइक दिस. तो अगर अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है तो इस पोजीशन को हम लोग क्या लेते हैं, दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड दिस इज ज्योग्राफिक साउथ. जो ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है इसको हम लोग ट्रू नॉर्थ कहते हैं. ज्योग्राफिक नॉर्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू नॉर्थ. एंड ज्योग्राफिक साउथ को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू साउथ कहते हैं. ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ मतलब ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ. जीएनजीएस हमने ये दिखा दिया. और हमने बताया कि हमें पता है कि अर्थ का जो जीएनजीएस है, जो अर्थ का जो मैग्नेट का, जो आपने भी पीछे देखा, मैंने आपको यहाँ बताया था कि भाई टोरंटो और मेलबोर्न में कुछ ऐसा, नॉर्थ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के आजू बाजू यहाँ पे कहीं पे हमें कुछ इस तरीके का मिलता है अलाइनमेंट. जब मैग्नेटिक डाइपोल हम ले जाके लाते हैं, निडल लेके जाते हैं, तो निडल ऐसे अलाइन हो जाती है, तो इस तरीके से निडल का अलाइन होना. यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, एक मिनट रुक जाओ. ये इसका साउथ पोल है, जैसे कि हमने यहाँ दिखा रखा है, यहाँ पे ऐसे दिखा दिया. और जब वो यहाँ अलाइन हो रहा होता है इस जगह पे, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि देखो इसका साउथ ऐसे अट्रैक्ट, वी कैन शो इट लाइक दिस. हम इसके नॉर्थ को ऐसे और इसके साउथ को ऐसे दिखा सकते हैं. सो व्हाट आई वांटेड टू से दैट कि यहाँ पे साउथ पोल को ये, यानी कि निडल का साउथ पोल इधर चला जाता है और यहाँ पे निडल का नॉर्थ पोल ऐसे चला जाता है. एनीवे, सो नाउ व्हाट आई मीन टू से इज
कि मैंने आपको ये बताया था कि ये मेलबोर्न है, मेलबोर्न के पास यहाँ पे अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल ऐसे चला जाता है उसकी तरफ, और टोरंटो में अर्थ के मैग्नेट, सॉरी, मेलबोर्न में जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी निडल इस तरीके से आ जाती है। और अगर वर्टिकली अलाउ करें उसको, और अगर यहाँ पे भी वर्टिकली अलाउ करें, तो उसका जो नॉर्थ पोल है वो ऐसे इस तरीके से डिप कर जाता है, सीधा वर्टिकली आ जाता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे अर्थ का मैग्नेट के पोल्स यहाँ कहीं होने चाहिए। तो इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे, राइट, ये प्रैक्टिकल फाइंडिंग है, राइट, यहाँ पे ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ है ये लाइन, और इससे ये लाइन और ये जो देख रहे हैं, यानी कि जो ये जो जगह है जहाँ पे हम बात कर रहे थे, टोरंटो और मेलबोर्न की बात कर रहे थे, एक टोरंटो एंड मेलबोर्न की बात कर रहे थे हम लोग। तो इसको और इसको जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो ये लाइन है। और हम ये मानते हैं कि इस जगह पे, यानी कि इफ यू टॉक अबाउट दिस एंड दिस, तो ये अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है। इफ यू लुक व्हाट आई हैव रिटन, MAC, मैग्नेटिक साउथ ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है, और MNE अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। बट यहाँ क्या लिखा मैंने, MN, मैग्नेटिक नॉर्थ। तो जिसको हम ज्योग्राफिक नॉर्थ कहते हैं वो ट्रू नॉर्थ कहलाता है। ज्योग्राफिक नॉर्थ को हम ट्रू नॉर्थ कहते हैं। और हम जब यहाँ पे कहीं पे फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट करते हैं, तो वो हमारा मैग्नेट किधर जो अलाइन करता है, वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ नहीं करता, वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ नहीं करता, बल्कि थोड़ा नॉर्थ से, जो यानी कि जो अर्थ के मैग्नेट का जिधर साउथ है, हमारा निडल उधर की तरफ जाता है, यानी कि दिस इज कॉल्ड, आपको समझ में आ रही बात मैंने क्या कहा। और जब हम लोग और सरफेस पे कहीं खड़े होकर के मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो उस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, मतलब मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पोल है, वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जा रहा है ऐसा हमें लगता है, बट एक्चुअली वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ नहीं जाता है। वहां पे, मतलब वो जिस जगह पे हम एक्सपेरिमेंट करें, वहां से अर्थ के मैग्नेट का जो साउथ पोल है, जिसको हम लोग अपने नजरिए से मैग्नेटिक नॉर्थ कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड MSE? मैग्नेटिक नॉर्थ का मतलब कि ये मैग्नेटिक नॉर्थ किसके हिसाब से ये टर्मिनोलॉजी दी गई है, जो कंपास में निडल है उसके हिसाब से ही। कंपास का निडल का नॉर्थ इधर आता है तो इसको मैग्नेटिक नॉर्थ कहते हैं। एंड चूंकि वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है, यानी कि नॉर्थ साइड की तरफ है, इसलिए उसको मैग्नेटिक नॉर्थ कहा गया। तो ये नोमेनक्लेचर दिया गया है मैग्नेटिक नॉर्थ कंपास के निडल के नजरिए से। और इसको मैग्नेटिक साउथ अर्थ, यानी कि अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है यहाँ पे, ये अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है यहाँ पे। एंड तो जब हम कहीं पे मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं और वो निडल कुछ इस तरीके से अलाइन करती है, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक साउथ है, ये जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये हम लोग मैग्नेट, अर्थ के मैग्नेट को मानते हैं कि वो कुछ इस तरीके से है। तो ये जैसे अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ है, तो ये ज्योग्राफिक एक्सिस है जिसके अबाउट रोटेशन होता है। और ये ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ वाली जो लाइन है, इसको हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस भी कह सकते हैं इसको। वी कैन कॉल इट मैग्नेटिक एक्सिस, बट देर इज नो सच टर्म एक्चुअली बीइंग यूज्ड। तो ये इस तरीके से दिखा गया है। कुछ लोग इसी डायग्राम को, इसी फिगर को सीधा ऐसे सपाट दिखाते हैं, यानी कि अर्थ की टिल्टिंग नहीं दिखाते। तो दे शो इट लाइक दिस कि ओके, अच्छा यहाँ मैंने NG लिखा हुआ है, मतलब यहाँ ये टर्मिनोलॉजी भी आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ एंड G फॉर ज्योग्राफिक, ज्योग्राफिक नॉर्थ, साउथ G, साउथ ज्योग्राफिक साउथ। सो दे ऑल्सो शो इट लाइक दिस। तो आप GN GS लिख लें, जी, या GN की जगह पे NG और GS की जगह पे SG लिख लें, ऐसे काम चला लें। GN और GS को हम लोग ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ कहते हैं, या NG और SG को हम लोग ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ कहते हैं। बट हमें मालूम है कि निडल हमारा जो है उस नॉर्थ साउथ के बजाय थोड़ा डिफ्लेक्ट होती है, जो अर्थ के मैग्नेट के का जो एक्सिस है उसकी तरफ होती है। सो दिस इज योर मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। ये मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ मैग्नेटिक डिल के रेफरेंस में दिया गया टर्म। तो वी कम टू नो दैट कि अर्थ को मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये अलाइन होता है। और अब हमें ये पता चला कि जो ये एंगल है, दिस पर्टिकुलर एंगल, सो दिस पर्टिकुलर एंगल, यानी कि जो ये ज्योग्राफिक एक्सिस और ये मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज 11.3 डिग्री। ये कितना डिग्री है? 11.3 डिग्री। दिस इज 11.3 डिग्री। एंड ये जो लोकेशन है, ये जो हमारा नॉर्थ पोल जिसको मैग्नेटिक नॉर्थ कह रहे हैं हम लोग, इस इसका जो पोजीशन है, दिस वी राइट हियर, दिस इज 79.74 डिग्री नॉर्थ। 79.74 डिग्री नॉर्थ ये लैटिट्यूड है,
दिस इज लैटिट्यूड। और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो वो 71.8 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये वेस्ट होता है। दिस इज द पोजीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर, ये वेस्ट लिखा हुआ है, अगर आपको ये इसको हटा देते हैं ऐसे। सो दिस इज 71.8 डिग्री वेस्ट है। तो ये लॉन्गिट्यूड, ये लैटिट्यूड लिखा हुआ और ये लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ है, यानी कि इसका लोकेशन दिया है। और अगर इस पॉइंट का जहाँ की बात, इसकी बात करें तो इसका जो लैटिट्यूड है, इसका लैटिट्यूड है 79.74 डिग्री साउथ। एंड लॉन्गिट्यूड इसकी बात करें तो इसका लॉन्गिट्यूड आएगा 180 में से ये माइनस कर दोगे तो आप 108 डिग्री, 108.22 डिग्री, ये डिग्री लिखना चाहिए मुझे। एंड दिस इज नाउ यू राइट वेस्ट, ईस्ट लिखेंगे, इसको क्या लिखना है, ईस्ट लिखना है। दिस इज हाउ इट इज, दिस इज ईस्ट। सो जहां पे, जिस जगह पे हमें मैग्नेटिक नॉर्थ मिलता है, उस पोजीशन, उसका पोजीशन लैटिट्यूड कितना है 79.74 डिग्री नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड है 71.8 डिग्री वेस्ट। एंड नाउ दिस इज 79.74 डिग्री साउथ एंड 108 डिग्री, 108.22 डिग्री ईस्ट के करीब करीब हमें ये मिलता है। दिस इज हाउ दिस इज द, इस पोजीशन का और इस पोजीशन का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में हमने बता दिया आपको। नाउ जब हम लोग लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं और लैटिट्यूड की बात करते हैं तो किसी स्टूडेंट को ये तकलीफ हो सकती है कि सर मुझे पता ही नहीं होता है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है। तो आपको समझाने के लिए, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को समझाने, मैंने आपको यहाँ पे जरा देखो लैटिट्यूड को समझाने के लिए और लॉन्गिट्यूड को समझाने के लिए मैंने ये फिगर आपके लिए रखा है, लॉन्गिट्यूड को समझाने के लिए। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि आपको यहाँ पे ये ये सेंट्रल, आई मीन दिस इज इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर आपको दिख रहा होगा, ये हमारा मेन इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर। और इस इक्वेटर के पैरेलल ये क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन्स है, इक्वेटोरियल प्लेन्स है, इक्वेटोरियल प्लेन्स है ये भी इक्वेटोरियल प्लेन होगा, दिस इज आल्सो इक्वेटोरियल प्लेन। अब सपोज करो अर्थ के सरफेस पे कोई यहाँ रह रहा हो, somebody is staying at this point, somebody is staying at this point here, somebody is staying here and here। तो वो लोग क्या है, यानी कि अर्थ के सेंटर से ये जिस इक्वेटोरियल प्लेन में रह रहे हैं, तो इस लाइन को, यानी कि सेंटर से इसको ज्वाइन किया, और जो हमारा मेन इक्वेटर है, इसके ये जो लाइन, इसका जो रेडियस है, और ये ये इस रेडियस से जो ये लाइन एंगल बनाता है, दिस एंगल इज कॉल्ड latitude, this lambda is called latitude। I hope you understood this। यानी कि अगर मैं इस पूरे पोर्शन को, इसके बीच के पोर्शन को वाइड कर दूं यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन, तो ये हमारा क्या होगा, ये थ्री डायमेंशनल फॉर्म में। यानी कि अगर मैं इस ये जो पिंक लाइन है और ये जो येलो लाइन है, इस पिंक लाइन और येलो लाइन के बीच का जो एंगल है, दैट इज कॉल्ड लैम्डा। और यू नो आई मीन दिस विल बी द सेम फॉर ऑल दोज पीपल, यानी कि इस रिंग पे जितने भी लोग हैं, यानी जितने भी लोकेशंस हैं, इन सब लोकेशंस का एक ही होएगा क्या, लैटिट्यूड। दिस इज अबाउट लैटिट्यूड। अब अगर आप यहाँ कोई रहता हो, लेट्स सपोज यहाँ 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 कोई रहता है, तो आप यहाँ पे एक दूसरा रिंग लेंगे एंड यू विल टेक अनदर रिंग हियर। यहाँ और यहाँ कोई रहता हो तो आप एक दूसरा रिंग ले लीजिए, लेट्स टेक अनदर रिंग ओवर हियर। एंड इस रिंग को आप ऐसे उम्मीद करिए कि ओके यहाँ पे कोई रिंग रह रहा है, कोई रिंग ले लिया आपने। अब आपने जो लोकेशन चूज किया वो इस रिंग पे लाई करता है। अब वो इस रिंग पे लाई करता है तो ठीक है, आपने बोला कि भाई कोई यहाँ रह रहा है, टॉकिंग अबाउट एट दिस पॉइंट, तो फिर आप उसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करिए, और फिर वो इस लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा, लेट मी ज्वाइन दिस लाइन फॉर यू, ये आप अपने ऐसे ज्वाइन कर दिए। और अब आपने ये कहा कि ये वाला जो एंगल होगा, दिस विल बी लाइक, उसको आपने लेमडा 1 कह दिया, इसको लेमडा 2 कह दिया, दिस इज द डिफरेंट लैटिट्यूड। आई होप यू गॉट इट नाउ। सो यानी कि इक्वेटोरियल प्लेन के पैरेलल जो बड़े सारे रिंग्स होंगे, जो इक्वेटोरियल प्लेन्स होंगे, उन किसी प्लेन पे रहने वाले सबके लैटिट्यूड क्या होगा, सेम होगा। नाउ व्हाट इज लॉन्गिट्यूड? तो यू नो लाइक दिस इज अर्थ वी हैव टेकन, एंड ये हमारा मेन मेरिडियन होता है, मेन मेरिडियन, राइट। या इसी को हम लोग प्राइमरी मेरिडियन कहते हैं, मेन मेरिडियन, मेरिडियन, या इसको प्राइमरी मेरिडियन भी कहा जाएगा, प्राइमरी मेरिडियन। तो प्राइमरी मेरिडियन या मेन मेरिडियन जो भी कह लो आप इसको,
तो अब अगर इस प्राइमरी मेरिडियन से, अब ठीक है, ये तो हो गया इस तरीके से, यानी कि इक्वेटोरियल प्लेन से हम किस साइड पे हैं और ऐसे हमने लैटिट्यूड मेजर कर लिया. अब एट द सेम टाइम वी आर इंटरेस्टेड टू से दैट कि लेट्स सपोज समबडी इज स्टेइंग एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन, या यहाँ कहीं रह रहा हो, जैसे इसी रिंग पे. अब इसी रिंग पे कोई बंदा यहाँ रह रहा हो या कोई बंदा यहाँ रह रहा है, तो दोनों का लैटिट्यूड सेम होगा, बट एक चीज डिफरेंट होगा, क्या? लॉन्गिट्यूड, यानी कि हमारे मेन मेरिडियन से वो कहाँ पे स्टे कर रहा, वेयर इट इज स्टेइंग. सो इफ यू टेक अ पॉइंट, लाइक अगर मैं आपको ये दिखाऊं यहाँ पे, आई विल शो यू लाइक दिस. ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, अब अगर इसमें प्राइम मेरिडियन को थोड़ा थोड़ा ऐसे, थोड़ा इसको इधर घुमाता हूँ, लेट सपोज आई आई टेक इट लाइक दिस, इसको थोड़ा घुमाया, इसको थोड़ा इधर घुमा दिया, तो अब मेन मेरिडियन से जो प्राइम मेरिडियन है उससे ये क्या हो गया, थोड़ा एंगल शिफ्ट हो गया. फिर थोड़ा और इसको इधर घुमा दे, थोड़ा इसको और ऐसे घुमा दे, तो लो भाई, अब इस मेरिडियन से ये थोड़ा और एंगल शिफ्ट हो गया. तो यानी कि इस वर्टिकल रिंग पे भी अलग अलग लोकेशन होगा. थोड़ा और इसको आप इधर लेके जाइए, थोड़ा इसको और शिफ्ट कर दीजिए ऐसे, तो एक अलग मिल जाएगा. यू आर गेटिंग इट. सो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये दो कोऑर्डिनेट मिल करके अर्थ के हर अलग अलग पॉइंट का एक अलग अलग कोऑर्डिनेट बन जाता है. तो जैसे मैंने इसको यहाँ से देखो कि इस प्राइम मेरिडियन को इधर शिफ्ट करा था, आई वाज शिफ्टिंग टुवर्ड्स वेस्ट. मैं चाहूँ तो इसको ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर दूं, यानी कि इसको इधर लेके गया और इसको इधर लेके आया ऐसे. फिर अब मैं इसको और इधर शिफ्ट करूं, इसको और इधर शिफ्ट करूं, समथिंग लाइक दिस. तो ये क्या होगा, अलग, इसको यहाँ लेके गए, इसको यहाँ लेके गए. सो मीन्स ये क्या हो गया, अलग अलग मेरिडियन होएगा. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. सो दिस इज अबाउट ये हमारा प्राइम मेरिडियन है. तो इस प्राइम मेरिडियन से हम ईस्ट की तरफ और प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ अलग अलग वर्टिकल रिंग्स अगर हम सोचें तो वर्टिकल रिंग्स को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल सर्कल कहते हैं. व्हाट वी कॉल इट, लॉन्गिट्यूडिनल सर्कल. यानी कि अब अगर मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट लिया, लाइक जैसे 0 0 पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, लेट सपोज यहाँ 1 2 3 4 यहाँ कोई पॉइंट ले लिया. फिर इसके करस्पॉन्डिंग, मतलब अब इस 4 से पास करता हुआ कोई वर्टिकल रिंग की बात करें, 4 से, तो आप एक ऐसे उम्मीद करिए, ऐसे 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 उम्मीद करिए, ऐसे ऐसे लेके आइए, लेके आइए, लेके आइए, लेके आइए. सो आई मीन ये जो एक वर्टिकल सर्कल बनेगा, ये जो वर्टिकल सर्कल बनेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंगली उधर भी बनेगा, वो कुछ ऐसे बनेगा, समथिंग लाइक दिस विल हैपन. तो ये जो वर्टिकल सर्कल आप बनाएंगे, ये जो वर्टिकल सर्कल बनाएंगे, इस वर्टिकल सर्कल को, अब ये ठीक से नहीं बना तो मैं इसको हटाता हूँ फॉर अ वाइल. इसको यहाँ से हटाया और इसको यहाँ से हटाया. सो व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर मैं कोई ये 4 और उसको ज्वाइन करने के लिए, मैं लेट सपोज मैं ये एक सर्कल लेके दिखा रहा हूँ आपको. आई आई यूज दिस पर्टिकुलर सर्कल. अब अगर मैं एक सर्कल लेके आऊँ, मैं बोला देखो जी ये 4 हो गया यहाँ पे, और फिर उसी तरीके से मैंने बोला हेलो लाइक दिस, मतलब 0 था, 1 2 3 4 समथिंग लाइक दिस, इसको लेके आओ यहाँ पे. और ये, तो अब ये दूसरा क्या हो, इफ यू टॉक अबाउट दिस, तो ये यहाँ से पास करता है, उस पे एक एरो बना के ऐसे दिखाओ. मान लीजिए कि अब यहाँ से ऐसे गए, इस पे ऐसे कोई अलग अलग पोजीशन, ये उधर साइड से, ये दिखाने के लिए, मतलब मैं इसको रोटेशन नहीं दिखा रहा हूँ, मतलब somebody is staying here, एक बंदा यहाँ स्टे कर रहा है, एक बंदा यहाँ स्टे कर रहा है, एक बंदा यहाँ स्टे कर रहा है, एक बंदा यहाँ स्टे कर रहा है. तो इसके लिए जो यहाँ से इधर गया होगा इस पोजीशन से, इसका इसका लॉन्गिट्यूड कैसे लिखेंगे, हम इसके फॉर्म में लिखेंगे. इससे अगर इसका लॉन्गिट्यूड निकालना होगा तो क्या होगा, हम घूम के बताएंगे कि देखो जी यहाँ से वो इतने डिग्री उधर की तरफ है, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ है, ये इतना से इतने डिग्री ईस्ट की तरफ है. सो दिस इज हाउ, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल सर्कल कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सर्कल कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल सर्कल. आई होप यू गॉट इट नाउ. सो अबाउट दिस इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की बात बता रहा था मैं. नाउ लेट्स गो टू दिस पेज. सो आई सेड दैट कि ठीक है, यानी कि जहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ है हमारा, मैग्नेटिक साउथ है, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है ये हमारे पास. सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि अर्थ मैग्नेट के अपने पोल्स होते हैं, और उनकी लोकेशंस भी हमने समझ लिया, और हमने ये भी देख लिया कि ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ से और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के बीच में एक एंगल 11.3 डिग्री हमको मिलता है. इतनी बात आप समझ गए होंगे. यस. नाउ वी विल बी गोइंग फॉर अनदर पॉइंट, व्हाट इज कॉल्ड मेरिडियन. व्हाट इज मेरिडियन? सो और नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज मेरिडियन. व्हाट इज मेरिडियन? व्हाट इज मेरिडियन? मेरिडियन किसको कहते हैं?
मेरिडियन क्या चीज होता है? सो मेरिडियन मीन्स, मेरिडियन का मतलब है वर्टिकल, मेरिडियन मीन्स वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। मेरिडियन का मतलब क्या हुआ? वर्टिकल प्लेन। ठीक है, मेरिडियन मीन्स वर्टिकल प्लेन। सो इस मेरिडियन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मेरिडियन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन, वन इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन, मेरिडियन, एंड दूसरा इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। So I said that meridian means vertical plane, geographic meridian and magnetic meridian. Now what is geographic meridian? So इसका क्या मतलब है और इस magnetic meridian का क्या मतलब? So I would like to say that कि अगर एक बंदा अर्थ सरफेस के ऊपर कहीं भी खड़ा है, राइट, आपको याद होगा कि मैंने I would show it like this. चलो, ज्योग्राफिक मेरिडियन को हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज ज्योग्राफिक मेरिडियन? ज्योग्राफिक मेरिडियन को समझने की कोशिश करते हैं तो यू नो लाइक ये अर्थ है हमारी, और वी नो हियर इज आवर नॉर्थ पोल एंड हियर इज आवर साउथ पोल, और यहाँ कहीं पे, इधर कहीं पे, इस जगह पे हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है, और यहाँ कहीं पे मैग्नेटिक साउथ है, इस जगह पे कहीं पे मैग्नेटिक साउथ है हमारा, मतलब दिस इज हाउ इट इज। एनीवे, लेट सपोज नाउ समबडी इज, आप, ये लॉन्गिट्यूडनल सर्कल्स बड़े सारे बने हुए हैं। अब अगर एक बंदा इस जगह पे कोई खड़ा है, यहाँ पे कोई है बंदा, अब इस जगह पे ये बंदा खड़ा रख करके, ये जो पोजीशन देख रहा है ये वाली पोजीशन पे, यहाँ खड़ा रह करके, और मैंने इस लोकेशन पे है, तो इससे इस बंदे को ध्यान में रखते हुए, और ये जो ग्राफिक नॉर्थ साउथ वाली जो लाइन है उसको ध्यान रखते हुए, एक प्लेन आप सोचिए, वर्टिकल प्लेन सोचिए। जो वर्टिकल प्लेन आप लेंगे, उस वर्टिकल प्लेन को आप क्या कहेंगे? ज्योग्राफिक मेरिडियन। आपने सुना मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिक साउथ है। इधर मैग्नेटिक नॉर्थ बताया, मैंने मैग्नेटिक साउथ बता दिया। लेट सपोज इस पूरे ये अलग अलग लॉन्गिट्यूडनल सर्कल्स बने हुए, सपोज करो इस जगह पे ये जो पर्टिकुलर मैंने पॉइंट लिया, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं वन। आई प्लेस दिस पॉइंट वन, मैंने इसका नाम वन रख दिया। अब अगर वन पे कोई बंदा है अर्थ के सरफेस के ऊपर, और कोई वन पॉइंट पे, तो उससे पूछा जाए ज्योग्राफिक नॉर्थ किधर है, तो ये रहा। उससे पूछा जाए ज्योग्राफिक साउथ क्या है, तो ये है। तो अगर वन को ध्यान रखते हुए, फिर इस नॉर्थ को ध्यान रखते हुए और इस साउथ को ध्यान रखते हुए एक वर्टिकल प्लेन खींचा जाए, जो वर्टिकल प्लेन होगा वो कैसा होगा? दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब मैं आपको उसको आपको समझाने के लिए, वन और उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। लेट्स सी हियर, मैंने यहाँ से एक डिस्क उठाया और ये डिस्क लेके आया, और इसको मैंने कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया है। ध्यान दीजिए आप, ये वन पे आ गया, इसको घुमाया ऐसे ऐसे, और मैंने बोला कि नॉर्थ साउथ का भी ध्यान रखना में। चलो भैया, अब यहाँ पे, अब देखो आप, इफ यू लुक एट दिस, तो क्या आपको दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा है कि ओके, वन, ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ, इस वन से और ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ से पास करता हुआ जो ये प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, दिस पर्टिकुलर प्लेन जो अब आपको दिखाई दे रहा है, ये वर्टिकल प्लेन क्या कहलाएगा? ये वन है, यहाँ ज्योग्राफिक नॉर्थ है, यहाँ ज्योग्राफिक साउथ है। तो इससे पास करता हुआ ये डिस्क क्या बन जाएगा? ये एक वर्टिकल प्लेन होगा। दिस वर्टिकल प्लेन विल बी कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, मैं फिर एक यहाँ यहाँ लेके गया, तो आपको पता था कि यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, वन, और ऐसे किया। अब उसी तरीके से आपको दूसरा पॉइंट ले लीजिए। लेट्स से हियर, लेट मी चूज सम अनदर पॉइंट। मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, दिस इज एन, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया और बोला ओके दिस लोकेशन इज टू, दिस लोकेशन इज टू। अब इस टू को और इस ज्योग्राफिक नॉर्थ को और ज्योग्राफिक साउथ को, इससे ध्यान रखता हुआ हमें कोई क्या चाहिए? वर्टिकल प्लेन चाहिए, यानी कि इस टू से एन और साउथ से ऐसे पास करता हुआ एक वर्टिकल प्लेन चाहिए। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर दैट, अगेन टेक दिस एंड लेके आओ यहाँ पे। अब ये टू पे होना चाहिए, और ये हमारे नॉर्थ से भी गुजरना चाहिए और साउथ से भी गुजरना चाहिए, ये पॉइंट के लिए। अब जरा आप गौर से देखिए, डोंट यू फाइंड दैट कि टू, ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ, इस सबसे पास करते हुए ये क्या हो गया? ये यू नो दिस इज अ वर्टिकल प्लेन, इट्स नॉट अ स्फीयर। तो ये जो प्लेन होगा, अब ये क्या हो गया? टू के लिए और एन एस के लिए ये क्या हो जाएगा? ज्योग्राफिक मेरिडियन हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, नो? तो मैंने यहाँ पे ज्योग्राफिक मेरिडियन आपको समझा दिया। तो मैं अब यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, हाउ विल आई राइट दिस? अगर ज्योग्राफिक मेरिडियन की बात कर रहे हैं, तो जो अर्थ सरफेस पे जहां पे भी है, यानी कि जो भी हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है,
उस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और GM GS जो ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ है, उन तीनों से पास करता हुआ जो वर्टिकल प्लेन होगा, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन. सो अ प्लेन, आई एम राइटिंग हियर, a plane which a plane which is vertical, a plane which is vertical, vertical, and passing through point of observation, point of observation, point of observation, and 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 the GNG and the GNGS line, GNGS line. A plane which is vertical and passing through point of observation, and GNGS line is called geographic meridian. Is called geographic meridian. और आपको मैंने समझा भी दिया यहाँ पे डायग्रामेटिक ज्योग्राफिक मेरिडियन. ठीक है, दिस इज आवर ज्योग्राफिक मेरिडियन. ठीक है जी. सो ये हमारा जो प्लेन हुआ, दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन. नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन? अब मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करेंगे तो अब क्या हुआ कि जिस पॉइंट पे आप, ठीक है ना, a plane which is vertical and passing through point of observation on earth surface, यहाँ पे एक on earth surface लिख देते, on earth surface, on on earth surface, earth surface. A plane which is vertical and passing through point of observation on earth surface and the GNGS line is called geographic meridian. Okay, so this is called geographic meridian. I hope you got my point. आपको भी समझा दूंगा, मतलब आपको अगर प्रैक्टिकली आपको ये देखना होगा तो ये क्या होगा ये भी बता दूंगा अभी. व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन? जब मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करेंगे तो हम कहेंगे वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन which passes through a vertical plane which passes through axis of a vertical plane which passes through axis of freely suspended magnet. A vertical plane which passes through छूट रहा है, which passes through axis of freely suspended magnet. अच्छा, मतलब फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कैसे अलाइन करेगा? वो अपने अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के अलोंग अलाइन करेगा. तो उस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के एक्सिस को और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वर्टिकल प्लेन व्हिच passes through axis of freely suspended magnet and point of observation, and obviously जो आपने वो ले लिया, I mean उससे पास करता है, and point of observation, point of observation. ठीक है, a vertical plane which passes through axis of freely suspended magnet and point of observation on surface of earth, so on surface of earth, that is called magnetic meridian. अब अगर मैग्नेटिक मेरिडियन को समझना है जैसे अभी पीछे समझ रहे थे उसी तरीके से, तो अब देखो ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये आपका मैग्नेटिक साउथ है. अब ये वन पे कोई बंदा खड़ा है यहाँ. सो बच्चा जरा सोचो, अगर आप यहाँ पे कोई मैग्नेटिक निडल, आई मीन कोई कंपास रखोगे तो वो कंपास कैसे लाइन करेगा? तो पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो कंपास कैसे लाइन करेगा. लुक एट दिस हियर, इधर मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ है. तो आप इसको ध्यान रखते हुए एक, लुक एट दिस हियर, ये पोजीशन है. दिस विल पॉइंट टुवर्ड्स, यानी कि इसका नॉर्थ इधर की तरफ जाएगा, इधर साउथ होगा. अब आपको मैंने ये कहा, इज दैट ओके नाउ? अब अगर कोई दो पे बंदा होगा तो वो कैसे हो? उसके लिए ये नॉर्थ ऐसे होगा, समथिंग लाइक दिस. ये मैग्नेटिक नॉर्थ है तो ये इसका नॉर्थ पॉइंट उधर करेगा. सो व्हाट आई वांटेड टू से नाउ, इस केस में, यानी कि ये मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे कि अगर ये ऐसे लाइन कर रहा है, ये ऐसे लाइन कर रहा है, यानी कि यहाँ पे इस वन पे अगर आपने एक मैग्नेटिक नीडल लाई तो वो इधर की तरफ जाएगा, यहाँ रखोगे तो वो इधर की तरफ जाएगा. तो अब इससे पास करता हुआ जो वर्टिकल प्लेन होगा,
और इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से जो पास करता होगा डेफिनेटली वो एम एन और एम एस से भी पास करेगा. एंड जस्ट टू मेक यू मोर श्योर, अब मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ. आई चूज दिस एंड यहाँ लेके आए. अब आपका पर्पस क्या है, एम एन एस से गुजारना उसको. तो ये आपका पोजीशन आ गया. पहले यहाँ पे ये एम एन और इसको लेके आए, इस करते गए. सो व्हाट आई मीन टू से इज, ये ये जो प्लेन होएगा आप, मतलब इस एम एन और एस से जो पास करता हुआ जो प्लेन हो, यानी कि इसका ध्यान रखना है आपको. यहाँ से इसको और फैलाओ 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 फैलाओ, राइट राइट. ठीक है जी. अब इसको अब आप ये जो वर्टिकल प्लेन हुआ जो इन तीनों से पास कर रहा है, देख रहे हो, एम एन एस और ये इससे पास करते हो, ये जो वर्टिकल प्लेन हुआ, दिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन. इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन. क्योंकि ये जो लाइन, ये कैसे लाइन हुआ, इस एम एस और एम एन से जो ये पास करने वाली जो लाइन थी, ये जो लाइन थी, ये इसके ठीक पैरेलल हो गया. तो दैट्स व्हाट आई मीन टू से दैट कि समझ गए आप मेरी बात, मैंने कैसे यहाँ पे ये दिखाया. ये देखिए इस तरीके से. ठीक है, यानी कि इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए और इस मैग्नेटिक एस को ध्यान में रखते हुए आप एक वर्टिकल प्लेन की उम्मीद कर रहे हैं. दैट्स हाउ यू आर डूइंग इट. तो अब इसको इसको और इस एमएस को पास करता हुआ आपको एक प्लेन चाहिए, आई मीन एक वर्टिकल प्लेन चाहिए. दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन. सो नाउ अगर मैंने इस एम एन एस एस को अगर कोई इस तरीके से ज्वाइन कर दूं, इफ आई ज्वाइन लाइक दिस, इफ आई ज्वाइन लाइक दिस, एम एन एस को ऐसे ज्वाइन करता हूँ, ध्यान देखना, ये ठीक है जी, इस तरीके से ज्वाइन किया. और ये जो हमारा पॉइंटर था जिसको, यानी कि ये एम एन एम एस को मैंने ज्वाइन करने वाली आपको ये दिखाया. और व्हाट आई वांट टू से इज, ये जो हमने पॉइंटर लिया है इसको थोड़ा सा, जस्ट टू मेक यू, व्हाट इज बीइंग सेड नाउ, आपको एक ऐसे प्लेन की कोशिश करना है. यू हैव टू फाइंड अ प्लेन जो इसको, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इनसे पास करता हुआ कोई वर्टिकल प्लेन चाहिए. अब इसको उठाया आपने, इसको उठाया और बोला हेलो आ जाओ यहाँ पे. ये सब एक प्लेन में हो गए. आई होप यू गॉट इट नाउ. लेके आओ इसको पास ऐसे. ये जो प्लेन हुआ, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन. ये इस जगह से पास करता हूँ, ये मैग्नेटिक मेरिडियन. अब अगर मैं इसको इधर के लिए, इस पॉइंट के लिए अप्लाई करूं, इस टू और एम एन एस से पास करता हुआ इसकी बात करें, तो ये एक अलग प्लेन होगा. दिस विल बी अ डिफरेंट प्लेन. यानी कि आपको टू को ध्यान रखना है और फिर एम एन एस से पास करता हुआ वर्टिकल प्लेन लेना है, तो दैट प्लेन विल बी डिफरेंट. सो मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक मेरिडियन मीन्स अ वर्टिकल प्लेन, a vertical plane which passes through axis of freely suspended magnet and point of observation on surface of earth. और जो freely suspended magnet का जो axis होगा, right, that is parallel to the magnetic axis, therefore it is being said that. इसको हम other words में ऐसे भी लिख सकते हैं, vertical plane, a vertical plane passing through point of observation on surface of earth, on surface of earth, surface of earth and, एक मिनट, ये थोड़ा लिपट गया तो अच्छा नहीं लगेगा. या, सो ऑन सरफेस ऑफ अर्थ,
and magnetic axis of Earth. That is called magnetic meridian. So आप ये जो होगा ये magnetic meridian होगा. So we know what is geographic meridian and what is magnetic meridian. What is meridian? Vertical plane है. ये दोनों बातें समझ में आ गई आपको. मैं अब आपको प्रैक्टिकली ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन समझने के लिए आपको एक बात समझाना चाहूंगा. जरा गौर से देखना. मैं एक फिगर बना लेता हूँ और फिर फिगर बनाने के बाद मैं आपको चाहूंगा कि आप उसको ध्यान से समझें. यस, सो नाउ वी कैन लुक एट कि सी नाउ दिस इज अर्थ फॉर अस. ये हमारे लिए अर्थ है. दिस इज दिस इज आवर अर्थ. और इस अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ यानी कि अर्थ के ऊपर आप किसी पॉइंट पे आप ऐसे खड़े. सो डेफिनेटली यू नो लाइक यू आर एट अ डिफरेंट लोकेशन. अर्थ की इस पोजीशन पे आप खड़े हैं तो आपको पता है कि नॉर्थ अब इधर कहीं है. मतलब दिस यू आर नॉट स्टैंडिंग ऑन नॉर्थ पोल. मतलब पृथ्वी के आप किसी जगह पे खड़े हैं तो आपकी पूरी पृथ्वी आपके पैर के नीचे है ऐसे. और आपको पता चला कि ज्योग्राफिक नॉर्थ इधर कहीं पे है. यार हियर इज द पॉइंट ऑफ ज्योग्राफिक नॉर्थ. ये आपका पोजीशन है ज्योग्राफिक नॉर्थ का. और ये पोजीशन आपका ज्योग्राफिक साउथ का. तो अब ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ से पास करता हुआ एक्सिस ये है और आप यहाँ पे हैं. और ये आपका आई साइट है भाई. ये आई मीन ये लाइन ऑफ साइट है. तो अब आपको आपको ध्यान रखते हुए और इस ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ वाली जो लाइन है इससे पास करते हुए एक वर्टिकल प्लेन सोचना हमें. तो सी दिस वर्टिकल प्लेन. ये जो वर्टिकल प्लेन है ये वर्टिकल प्लेन किसको किसको ध्यान में रख के बनाया गया है. दिस वर्टिकल प्लेन इज लाइक जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है और जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ से पास करने वाली जो लाइन है जो ज्योग्राफिक एक्सिस है. so this vertical plane is now passing through point of observation and GNGS. this is called geographic meridian. ये है आपका जियोग्राफिक मेरिडियन. जियोग्राफिक मेरिडियन. तो मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे बताया. अब सपोज कर लो आप यहाँ पे हाथ में एक कंपास रखते हो. यू प्लेस अ कंपास ओवर हियर. और जैसे ही कंपास रखते हो अपने हाथ पे तो उसकी जो निडल है वो कुछ इस तरीके से अलाइन हो जा रही है. या एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट लेके आए तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को आपने लटका दिया तो वो कुछ ऐसे अलाइन हो जा रहा है. इट इज नॉट गोइंग दिस वे. यानी कि ये नॉर्थ साउथ यानी व्हाट आई मीन टू से दैट. जरा ध्यान से समझना बच्चे. मैंने कहा कि ये ऐसे रिप्रेजेंट होने के बजाय इस तरीके से ये GNGS जैसा दिखाई दे रहा है. ये इस तरफ नहीं जा रहा है. दिस इज नॉट गोइंग लाइक दिस. इट इज नॉट. ये इस तरीके से अलाइन नहीं हो रहा है. अगर आप यहाँ पे निडल रख रहे हैं तो निडल इज नॉट गेटिंग अलाइन लाइक दिस. वाई? बिकॉज पता है कि जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है वहां पे अर्थ का मैग्नेट का साउथ नहीं है. वो तो थोड़ा इधर ऐसे पोजीशन है. ये इस तरीके से अलाइन नहीं होता है. ये इस तरीके से अलाइन नहीं होता. ये कैसे अलाइन हो रहा है? थोड़ा ऐसे अलाइन हो रहा है. फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का जो एक्सिस है वो ये हो गया. और या आप अपने हाथ पे कंपास रख लें और कंपास के निडल को आप देखेंगे तो निडल कुछ इस तरीके से अलाइन होगा. सो अगर आपने हाथ पे कंपास रखा उसको आपने देखा तो दिस विल अलाइन लाइक दिस. ये हटा करके ऐसे दिखा देता हूँ मैं इसको. इट इज लाइक दिस. इस तरीके से आपकी निडल आपके हाथ पे अगर रखोगे तो आप उसकी निडल ऐसे अलाइन होगी. तो अब उसके पीछे रीजन क्या है कि ऐसे लाइन इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे ये हमारा मैंने हमारे हिसाब से ये मैग्नेटिक नॉर्थ है. ज्योग्राफिक नॉर्थ इधर है मैग्नेटिक नॉर्थ इधर है. यानी यहाँ पे अर्थ के मैग्नेट का कौन सा पोजीशन है? अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है यहाँ पे. तो आई विल राइट MSE. याद होगा ना अभी पीछे नोटेशन बताया था. और यहाँ पे अर्थ के मैग्नेट का हमारा नॉर्थ पोजीशन है. दिस इज व्हाट. ये हमने मैग्नेटिक साउथ का. तो ये जो पोजीशन हुआ अलाइनमेंट का. तो अब फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का एक्सिस और जो ये मैग्नेटिक एक्सिस है अगर इस नॉर्थ और साउथ को ज्वाइन करूं मैं इसको किसी लाइन से ज्वाइन करूं. लेट्स सपोज आई यूज दिस वन. इफ आई यूज दिस वन तो इसको ध्यान में रखते हुए और ये जो चीज देख रहे हो आप ये इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आई होप यू गॉट माई पॉइंट. यानी कि नॉर्थ नॉर्थ साउथ और ये इन सबको एक वर्टिकल प्लेन में लेके आना है. तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का जो एक्सिस है या आप अपने हाथ पे एक कंपास रखिए और उसकी निडल जैसे पॉइंट हो रही है वो. और ये मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ इसको ध्यान में रखते हुए एक वर्टिकल प्लेन सोचा जाए तो वो वर्टिकल प्लेन ये होगा. दिस इज अ वर्टिकल प्लेन. दिस इज अ वर्टिकल प्लेन. ये भी एक वर्टिकल प्लेन है. और इस वर्टिकल प्लेन को हम क्या कहेंगे? वर्टिकल प्लेन है. और इस वर्टिकल प्लेन को हम कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन. व्हाट वी कॉल इट? मैग्नेटिक मेरिडियन. इज मैग्नेटिक मेरिडियन. सो ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन की अगर मैं बात करूं तो आई हैव मेड यू अंडरस्टूड नाउ कि
अगर आप जहाँ पे खड़े हैं और जो ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ इनसे मिलता जुलता है, यानी कि इनको ध्यान में रखते हुए एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ किया जाए, दैट इज ज्योग्राफिक मेरिडियन। और वहां पे फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के एक्सिस और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ से पास करता हुआ प्लेन ले लें, या फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के एक्सिस से पास करता हुआ वर्टिकल प्लेन ले लें, या 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 अपने हाथ पे एक कंपास रखें और उसकी निडल जैसे अलाइन करिए, उससे पास करता हुआ एक वर्टिकल प्लेन ले लें। तो ये है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन और ये होता है ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मेरिडियन। मेरिडियन एक वर्टिकल प्लेन है और ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन दो तरीके के मेरिडियन होते हैं। एंड हियर इन दिस डायग्राम आई हैव मेड यू अंडरस्टूड what is geographic meridian and magnetic meridian. Is that okay now? Now we will talk about, अब ये पॉइंट हम लोग समझ गए ज्योग्राफिक मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, दैट वी हैव अंडरस्टूड। नाउ हियर आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर हमने ये दो पॉइंट समझ गए, अब हमारे पास है व्हाट इज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। जब हम एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की बात करेंगे तो व्हाट इज दैट एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन? तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन को समझाने के लिए मैं ये कहूंगा, जरा पहले इस डायग्राम पे समझते हैं। मैं एक निडल लेता हूँ यहाँ पे ब्लैक कलर का, जरा देखो ध्यान से। अगर इस जगह पे ये तो आपको पता है कि ये मैग्नेट है, हमारा मैग्नेटिक निडल है। अगर आप इस जगह पे एक निडल बिल्कुल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करते, कौन सा ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ, वो कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है। और अगर आप यहाँ रखते इस जगह पे, तो वो प्लेन कैसे जाता है? वो कुछ इस तरीके से जाता है, ज्योग्राफिक नॉर्थ वाला। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यस, समथिंग लाइक दिस इट कुड हैव बीन। ओके, सो व्हाट आई मीन टू से दैट, कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप, ये हमारा जो प्राइमरी मेरिडियन है, इससे इधर रहते हैं आप, मतलब इफ यू गो फ्रॉम दिस दिस पर्टिकुलर साइड, यानी कि प्राइमरी मेरिडियन से इस साइड के किसी पॉइंट पे जाते हैं आप, तो आप अगर निडल रखते हैं तो देखते हैं वो किधर मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ ऐसे जा रहा है, इस तरीके से। और आपका ये क्या है? ज्योग्राफिक नॉर्थ है। तो ज्योग्राफिक नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का जो ये एंगल है, दिस एंगल, या इधर से, यानी कि यहाँ पे अगर रख के देखते हैं तो ज्योग्राफिक नॉर्थ वाली ये लाइन होती है ज्योग्राफिक नॉर्थ, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ है। ये वाली जो लाइन है, ये जो एंगल है, दिस टू आई मीन मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ जो जा रही है, जो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जो पॉइंट कर रहा है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, यही एंगल हम लोग यहाँ भी दिखा रहे हैं। ये आई एम शोइंग यू द सेम एंगल इफ यू लुक एट दिस। या अगर ये जो वर्टिकल प्लेन है और ये जो वर्टिकल प्लेन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, इन दोनों के बीच का जो ये एंगल होगा, दिस एंगल इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड थीटा। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। सो व्हाट इज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन? सो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की बात करें तो आई होप हियर दिस डायग्राम इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की। तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की बात करें, व्हाट इज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन? तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन को अगर समझना है हमें, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, तो मैंने आपको दोनों बातें वहां पीछे जो समझाई है, दैट इज फैक्ट एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो आपको करना क्या है? किसी भी जगह पे आप अपने हाथ पे एक कंपास रखिए और उस कंपास का, लेट सपोज यू आर, पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे समझाना चाहूंगा। आई वुड लाइक इधर से निकलता हुआ दिखाई, लेट सपोज यहाँ पे सन, ये हमारे लिए पोजीशन है सन का, ये दिस इज आवर सन पोजीशन, ये सन पोजीशन। तो अब इसके लिए सन रेज कैसे जा रही है? दिस इज आई मीन ये मॉर्निंग का टाइम है, इसको पता रहेगी कि सनराइज हो रहा है यहाँ से। दिस इज सनराइज की पोजीशन है, ये सनराइज है। तो अगर इसको ज्वाइन कर दूं मैं यहाँ से, ऐसे कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर दूं, जरा ध्यान रखना, ये एक लाइन खींचा मैंने कुछ इस तरीके से, ये लाइन मैंने ज्वाइन कर दी है, ध्यान से समझना है। यहाँ से ये हमारे लिए ईस्ट हो गया, ये हमारे लिए वेस्ट हो गया। अब इसका 90 डिग्री पे एक लाइन खींचा मैंने, तो इसके 90 डिग्री पे मैंने एक लाइन खींच लिया। लेट सपोज इसके 90 डिग्री पे मैंने एक लाइन खींचा, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। सो नाउ ही नोज दैट कि ये हमारे लिए क्या है, ही फाइंड्स दैट कि यहाँ पे हमारे लिए नॉर्थ है और यहाँ साउथ है। अब ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है। अब यहाँ पे एक बंदा जो है, इस जगह पे जब वो हाथ पे मैग्नेटिक कंपास रखता है, तो जो उसकी निडल है वो बिल्कुल इस तरीके से अलाइन नहीं होती, इधर की तरफ अलाइन नहीं होती, बल्कि थोड़ी इधर अलाइन हो जाती है।
सो इट मीन्स कि अगर अगर एक निडल यहाँ पे अलाउ किया जा रहा है फ्रीली सस्पेंड होने के लिए, और वो निडल कुछ इस तरीके से अलाइन हो रही है, इट इज अलाइनिंग लाइक दिस, कुछ इस डायरेक्शन में अलाइन हो रही है, ये डायरेक्शन में अलाइन हो रही है। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये ज्योग्राफिक नॉर्थ हो गया, दिस इज योर ज्योग्राफिक नॉर्थ। और ये क्या हुआ आपके लिए, ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, यानी कि दिस नॉर्थ इज मैग्नेटिक। तो ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ, ये थीटा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। सो सो ज्योग्राफिक नॉर्थ और जो एक्चुअल मतलब उस जगह पे, ये इसको हम लोग ट्रू नॉर्थ कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट ट्रू नॉर्थ। तो ये ट्रू नॉर्थ है। और ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है हमारा, मैग्नेटिक नॉर्थ है, इस मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, राइट, ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। इट इज द सेम थिंग हियर व्हाट आई शोन यू, ये जो दिखाया है यहाँ पे, इट इज द सेम थिंग। सो अगर हम एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की बात करें, तो इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन, बिटवीन geographic meridian and it is the angle between geographic meridian and magnetic meridian। तो किसी भी जगह पे ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन अगर जो है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, इट इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, दोनों वर्टिकल प्लेन के बीच का जो एंगल होता है, दैट थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंड दिस थीटा is not same for all the points on Earth surface. This theta is not same for all the points on Earth surface. This theta is changing. Theta is changing. This theta, yeah, I should say that theta. This theta changes when point of when when point of observation changes. Point of observation changes. तो अलग अलग जगह पे अलग अलग एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन मिलेगा। आई होप यू हर्ड माय पॉइंट व्हाट आई सेड, दैट कि अगर अलग अलग जगह पे, यानी कि इट इज एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, थीटा चेंजेस व्हेन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंजेस। आई डोंट मीन दैट कि आप अपने घर के छत पे किया और फिर पड़ोसी की छत पे चले गए तो आपका थीटा चेंज हो गया, इतना बड़ा चेंज नहीं होता। बट दिस थीटा की वैल्यू, आई मीन दिस थीटा इज चेंजिंग ऑलमोस्ट, मतलब डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट एंगल हमारे को मिलता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। व्हाट आई सेड दैट थीटा चेंजेस एट, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात जो आपको बता रहा हूँ कि ये भी गौर करने की बात है, ये थीटा के बारे में जो आपको ये बात बता रहा हूँ, दिस थीटा किसी एक पोजीशन, थीटा एट वन पोजीशन, एट वन theta at one position also changes with change in time, with change in time, but the time is but that time is very large. The theta at one position also changes with change in time, but the time is very large, मतलब I mean the time, but the time interval is very large, but the time interval is very large, मतलब वेरी लार्ज। मेरा ये कहने का मतलब है यहाँ पे कि डी थीटा, मतलब जो चेंज इन थीटा है टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब बहुत बड़ा डिनोमिनेटर होगा, टाइम बहुत बड़ा होगा, तो थीटा में बहुत छोटा सा चेंज आएगा। तो दिस थीटा चेंजेस वो भी टाइम के साथ चेंज होता है, बट दैट चेंज इज वेरी मच, यानी कि दैट चेंज इन टाइम, बट द टाइम इंटरवल इज वेरी लार्ज, यानी कि बहुत लार्ज इंटरवल के बाद वो थीटा चेंज हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए फॉर दिल्ली। अगर हम दिल्ली की बात करें एंड मुंबई की बात करें, दिल्ली और मुंबई की बात करें, तो ये हमारे पास है, दिस इज 0 डिग्री 41 मिनट, 0 डिग्री 41 मिनट। तो वी कैन सिंपली से दैट 0 डिग्री 41 मिनट,
and this is here, this is 0 degree 51, 0 degree 51 और 58 मिनट। तो दिल्ली के लिए हमारे पास ये 0 डिग्री 41 मिनट है एंड दिस इज 0 डिग्री 58 मिनट। ये दिल्ली के लिए एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है, ये मुंबई के लिए। अब यहाँ पे ये है हमारे लिए ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट एंड वेस्ट। क्या मतलब है, अब जरा देखना यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे बात समझा रहा था। लुक एट दिस। अब जो बंदा यहाँ पे इस जगह पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, सो व्हाट ही फाइंड, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ वाली लाइन ये है और जो हमारा पॉइंटर है वो यहाँ से किधर की तरफ टिल्ट कर रहा है, तो ये वाला डायरेक्शन किधर है, दिस इज कॉल्ड वेस्ट। दिस इज यानी कि दिस इज, अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो ये किधर जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ, ऐसे जा रहे हैं तो किधर है, वेस्ट की तरफ है। तो ये यहाँ से ये किधर पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, इधर की तरफ, तो दिस इज आवर, दिस इज वेस्ट की तरफ जा रहा है। यहाँ से देखें तो ये किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ चेंज हो रहा है। तो दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज कि आप दिल्ली और मुंबई से अगर देखेंगे तो आपको जो डीप दिखाई देगा, जैसे मैंने यहाँ समझ गया ना कि अगर हमने 1 पॉइंट से एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन देखे तो हमने देखा कि जो हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है, वो दिस इज टर्निंग इन अ डिफरेंट वे, सो दिस इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि इस लाइन से इधर वेस्ट की तरफ जा रहा है। ये यहाँ से इस लाइन से इधर जा रहा है, यानी कि ईस्ट की तरफ जा रहा है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो दैट्स व्हाट, यानी कि ये जो है वेस्ट की तरफ, ये जो है ईस्ट की तरफ। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज कि इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ये बताने की कोशिश की कि फॉर दिल्ली दिस इज 0 डिग्री 41 ईस्ट 41 मिनट एंड मुंबई के लिए 0 डिग्री 50, 0 डिग्री 0 डिग्री 41 मिनट एंड दिस इज 0 डिग्री 58 मिनट वेस्ट है। सो दिस इज व्हाट वी गॉट इट नाउ। ये एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन के बारे में हमने पढ़ लिया, ये एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या होता है। दिस इज यूज्ड, दिस एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन इज यूज्ड टू फाइंड एक्चुअल डायरेक्शन। किसी भी जगह पे हमें अगर डिक्लाइनेशन का पता है तो हमें पता है कि मैग्नेटिक डायरेक्शन पॉइंटर दिखाया रहा होगा और उसके हिसाब से हमें ट्रू नॉर्थ किधर है, हमें लाइक लेट्स सपोज I know at this particular position, let's suppose this is a foggy situation. This is a complete foggy situation. I don't know, like, I don't know where is the north and all that. तो मैं यहाँ पे अपना निडल निकालूंगा और निडल देखूंगा कि ये इधर पॉइंट कर रहा है। अब मुझे अगर इस जगह का पता है कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वहां पे जो डिक्लाइनेशन है वो इतना ईस्ट है या इतना वेस्ट है। सो नाउ अगर पॉइंटर इधर शिफ्ट कर रहा है, पॉइंटर इधर शिफ्ट कर रहा है एंड ये हमारा थीटा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमें किधर टर्न करना है, ईस्ट की तरफ अगर हम टर्न करेंगे तो हमें ट्रू नॉर्थ मिल जाएगा। सो थीटा डिग्री ईस्ट अगर हम ट्रेवल करेंगे तो हमें नॉर्थ मिल जाएगा। तो इस जगह से इधर की तरफ टर्न करेंगे, अगर वेस्ट जाना होता है तो हम उसके हिसाब से टर्न कर लेते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यस, तो ये तरीका होता है अपनी बात को समझाने के लिए। अगर हमें यहाँ का एंगल ऑफ डी पूछा जाए तो ये क्या बताएंगे, तो भाई ये हमारा ट्रू नॉर्थ है, ट्रू नॉर्थ से इस जगह का इतना डिग्री वेस्ट कहेंगे, यानी कि ये वेस्ट की तरफ इतना है। अब अगर हमें ट्रू नॉर्थ की तरफ जाना है तो मैग्नेटिक नीडल से ईस्ट की तरफ चले जाएंगे। इज दैट ओके नाउ? यस। सो दिस इज हाउ डू। और अगर इस जगह पे रह करके हमें कोई बोले कि आपको साउथ की तरफ जाना है, सो टेल मी, यानी कि अगर जिस जगह पे आप खड़े हैं उस जगह का एंगल ऑफ डीप आपको दे रखा है। लेट सपोज जिस जगह पे खड़े हैं उसका एंगल ऑफ डीप आपको दे रखा है। एंगल ऑफ डीप बताया जा रहा है, लेट सपोज एंगल ऑफ डीप बताया जा रहा है 10 डिग्री वेस्ट। कितना बता रहा है? 10 डिग्री वेस्ट। तो आपको पता है कि आपकी ये निडल इधर है, ये निडल इधर है, निडल इधर दिखाई दे रही है और इस जगह का आपने बताया 10 डिग्री वेस्ट है। सो नाउ द पॉइंट इज कि ये 10 डिग्री वेस्ट की तरफ गया हुआ, 10 डिग्री वेस्ट की तरफ गया हुआ है, जैसे 10 डिग्री वेस्ट की तरफ गया। तो आपको बोला ट्रू साउथ जाना है तो आपको कितना टर्न करना पड़ेगा यहाँ से, ये कितना डिग्री हुआ 80 डिग्री और ये कितना हुआ 90, 80 और 90 170 डिग्री। आप अगर इस जहां से टर्न करेंगे तो आपको ट्रू साउथ मिलेगा। और यू कैन से दैट कि अगर ये है हमारे पास 10 डिग्री वेस्ट है यहाँ से, तो ये इधर किधर जाएगा, ये 10 डिग्री इस पोजीशन में जाएगा साउथ की तरफ, तो आप यहाँ से किधर चले जाइए, उल्टा चले जाइए, यानी कि इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन से इधर वेस्ट की तरफ, यानी वेस्ट की तरफ टर्न करेंगे तो आपको ट्रू साउथ मिल जाएगा। तो इस तरीके के बड़े सारे सवाल मिलेंगे आपको। इस ये जो मैंने डायग्राम बना के समझाया इससे रिलेटेड आपको बड़े सारे क्वेश्चंस मिलेंगे करने को। तो ये हमने एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की बात की। नाउ वी विल बी गोइंग फॉर समथिंग एल्स, दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डीप की बात करेंगे। विल टॉक अबाउट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और या दिस इज, ये इधर
इज डन। एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात करेंगे। सो अभी तक हमने एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन समझ लिया, और मैग्नेटिक मेरिडियन ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का एंगल भी समझ में आया, ये ईस्ट वेस्ट की कहानी भी समझ में आ गई हमें। अब हम लोग अपने को लेके चलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पढ़ने के लिए, या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। सो दिस इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, अब ये क्या चीज होता है, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझने की जरूरत है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, व्हाट इज दिस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन? तो मैं आप इसके लिए फिगर बना लेता हूँ, फिर आपको मैं आगे बताता हूँ। सो मैं आपको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन समझाना चाहता हूँ ना। सो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है, इसको समझने के पहले आप जरा ये फिगर देखिए, क्या दिखा रखा है। ये हमारा अर्थ है, दिस इज अर्थ। ओके, दिस इज अर्थ। एंड इस अर्थ पे आपको पता है कि यहाँ ज्योग्राफिक, दिस इज एन जी ज्योग्राफिक नॉर्थ, एंड दिस इज साउथ ज्योग्राफिक होता है, यहाँ पे साउथ ज्योग्राफिक होगा यहाँ पे। ऑलराइट, और फिर मैंने यहाँ क्या किया कि इस जगह पे देखो, यहाँ साउथ ईस्ट लिखा हुआ है। आई होप यू आर वाचिंग दिस, साउथ ई, ई फॉर अर्थ, ईस्ट नहीं लिखा हुआ है, ये साउथ ई यानी अर्थ का साउथ पोल है। और इस जगह पे आप देखें तो ये मैग्नेटिक साउथ मैंने लिखा है, दिस इज मैग्नेटिक साउथ है, ये मैग्नेटिक साउथ है इस जगह पे, दिस इज मैग्नेटिक साउथ। यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक साउथ है। एंड ये अर्थ का मैग्नेट का यहाँ पे नॉर्थ है, दिस इज नॉर्थ ई। आई मीन दिस इज जस्ट फॉर अ वाइल, मैं इसको यहाँ से, एक मिनट, आई एम सेइंग दिस इज नॉर्थ ई है। व्हाट इज दिस नॉर्थ ई? मीन्स नॉर्थ ई कहने का मतलब कि अर्थ का नॉर्थ का, अर्थ अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ, अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है यहाँ पे, एन ई लिख दिया। नॉर्थ अर्थ, अर्थ का नॉर्थ पोल है, या इसको, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इसी को हम लोगों ने यहाँ पे मैं, और ये देखो यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ लिखा हुआ है, और यहाँ मैग्नेटिक साउथ लिखा हुआ है। मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ यानी कि किसके, ये किसके हिसाब से, मैग्नेटिक कंपास के हिसाब से। मैग्नेटिक कंपास के हिसाब से यहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ है, यहाँ मैग्नेटिक साउथ है। अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल यहाँ है, अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ है। ये जो मैंने आपको ये दिखा रखा है, आपको अंदाजा है ये क्या है? तो मैं आपको एक एक करके चीज समझाना चाहूंगा, जरा गौर करना। मैं इसमें से ये एक छल्ला हटाता हूँ, देखो ये छल्ला हटाया है ऐसे, देख रहे हैं आप ये छल्ला, यानी कि ये मैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखा रहा हूँ। अब इसको सेट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से कि ये समथिंग लाइक दिस। मैंने यहाँ पे, अब देख रहे हैं ये ग्रीन वाला पोर्शन यहाँ से छुप गया। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ आपको, व्हाट आई वांट टू से इज, इस जगह पे मैंने ये बताने की कोशिश की आपको, इसको हटा करके फिर लाने पे, कि देखो अर्थ के मैग्नेट का यहाँ नॉर्थ पोल है, तो इससे लाइंस ऑफ फोर्स निकलती होंगी, ऐसे जा करके फिर साउथ में एंटर करती होगी। यस, सिमिलरली ये दूसरा वाला भी जो होगा वैसे ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये भी नॉर्थ से निकल करके लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जाके साउथ में एंटर करती होगी, ये भी साउथ में एंटर करती होगी। एक चांस और लेना चाहता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। ये देखिए मैंने यहाँ से निकाला, ये आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ये देखे ना, ये सर्कल है, बट मैंने इसको अंदर डुबो दिया और कुछ इस तरीके से सेटल किया, इस तरीके से सेटल किया कि ये इस नॉर्थ और साउथ को ध्यान में रखते हुए चले। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो हियर व्हाट आई मीन टू से इज कि ये नॉर्थ से निकली लाइन्स ऑफ फोर्स और साउथ में जा रही है। मैं अगर इस पे एरो डालना चाहूँ, इफ आई वांट टू अप्लाई एरो ऑन इट, शोइंग कि देखो ये लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकली, ये नॉर्थ से निकली ऐसे, ये नॉर्थ से निकली और साउथ में एंटर करिए, फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ कुछ ऐसे आ रही होगी, अंदर अंदर साउथ टू नॉर्थ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ रही होगी। यहां तक तो आप बात समझ गए, ओके। नाउ माय पॉइंट इज कि जब इस तरीके से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है, ये देखो मैं इसको ना, ये जो छल्ला है इस छल्ले को भी यहाँ सेट करना चाह रहा हूँ, और आपको दिखा रहा हूँ मैं कि देखो ये क्या किया मैंने, ये उठाया, ये छल्ला लेके आया, और देखो ये दिखा रहा हूँ कि ये देखो ये भी लाइंस ऑफ फोर्स है, ये भी लाइंस ऑफ फोर्स, फोर्स है। ये ये ऐसे इस तरीके से नॉर्थ और साउथ से ऐसे लेते हुए ये दिखाना चाह रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो लाइंस ऑफ फोर्स हियर। तो आप अगर आप गौर से देखो कि ये वाली लाइंस ऑफ फोर्स, और ये बिल्कुल यहाँ से नॉर्थ से ऐसे निकल के और साउथ में ऐसे जा रही है, तो मैंने आपको ये एक लाइन ऑफ फोर्स दिखा दिया कि ये भी एक लाइन ऑफ फोर्स।
यू डोंट अंडरस्टैंड दैट कि ये आपस में कट रही हैं, क्योंकि इसके पीछे ये है, इसके पीछे है, यानी कि नॉर्थ से ऐसे लाइन ऑफ फोर्स निकल के साउथ में जा रही है, और भी ऐसे बहुत सारी जाती होंगी। यस। तो क्या इस नॉर्थ से बिल्कुल अर्थ के सरफेस पे होते हुए, ये तो मैंने अर्थ के सरफेस से बाहर बाहर से दिखाया ना, मतलब थोड़ा ऐसे, क्या अर्थ के सरफेस पे और अर्थ के सरफेस के अंदर भी तो मैग्नेटिक फील्ड्स होती होंगी ना, नॉर्थ से निकल करके ऐसे साउथ में इसके अंदर ही अंदर चली जाती होंगी, जैसे ये साउथ से नॉर्थ आया तो इसके अंदर ही जाती होंगी। तो मैं ये अब जो मैं करने जा रहा हूँ उससे फिगर खराब होएगा, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब इस नॉर्थ से कुछ ऐसी भी लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकल करके ऐसे जाती होंगी, यहाँ से भी ऐसे निकल करके ऐसे जाती होंगी, ऐसे की तरफ फोल्ड जाती होंगी, और बिल्कुल इसके सरफेस पे भी, यानी कि टॉप, बिल्कुल अर्थ के अपर सरफेस से होती हुई जाती होंगी। तो ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इतनी बात तो समझ के, ये और मैग्नेटिक लाइन, मैंने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कह दिया, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर, दिस इज और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है कि किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन है वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड उस जगह पे जो होगा उसका डायरेक्शन है। इतनी बात तो आप समझ गए, ओके। अब मैं अगर इस फिगर को, ये जो दिखा रखा है कि ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ है, ये अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है, लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही हैं, ये सारी बात आप समझ गए। हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पढ़ना है। तो मैं आपसे ये कहूँ कि अब मैं, ये बात आप समझ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे आपसे एक, फिर से एक स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ किया, और अब मैं यहाँ पे एक ये पहले पॉइंट्स बना देता हूं आपके लिए। पहले ये हमारा, दिस इज, और दिस इज आवर, अब अर्थ के मैग्नेट के हिसाब से यहाँ पे मैंने बोला कि अर्थ के मैग्नेट का यहाँ साउथ है और अर्थ के मैग्नेट का यहाँ पे नॉर्थ है, सिर्फ अभी ये दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, और ये ज्योग्राफिक, आपको पता ही है कि ज्योग्राफिक नॉर्थ है यहाँ पे, दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ है, दिस इज ज्योग्राफिक साउथ है ये। अब मैं इसके ऊपर, यानी कि इसके नॉर्थ से निकल के लाइंस ऑफ फोर्स जो नॉर्थ से निकल के जो साउथ ऐसे जा रही होंगी, फिर साउथ से नॉर्थ ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स आ रही, मैं ये एक लाइन ऑफ फोर्स दिखा रहा हूँ, and मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझोगे, लाइक दिस। देखिए, देखिए मैं ऐसे, ओके। अब मैंने यहाँ क्या किया, जरा गौर करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस नॉर्थ से लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकली, ये ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स मैंने मान लिया इसको, आई एम कंसीडरिंग इट इज लाइंस ऑफ फोर्स। ये लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकली नॉर्थ से ऐसे होते हुए सरफेस पे, बिल्कुल सरफेस पे होते हुए नॉर्थ से निकल के ऐसे साउथ पे चली गई, और फिर दो येलो लाइन में ले रहा हूँ भाई, ये ऐसे दिखाने के लिए। देखो, ये जो गई नॉर्थ से साउथ ऐसे, और फिर जो दूसरा जो है वो नॉर्थ से साउथ, जो ये गया है, दिस वन, ये जो गया है वो ऐसे कुछ लौट के यहाँ अंदर अंदर आ गया। ये तो सरफेस की बात हो गई। अब जरा गौर करो, तो सपोज करो ये अर्थ के सरफेस पे आप ऐसे जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर एक बंदा है यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे, यानी कि अब मैं इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के नजरिए से इस बात को करना चाहूंगा। तो मैं यहाँ पे एक डिवीजन लेता हूँ, लेट सपोज समथिंग लाइक दिस, ऐसे ले लिया। अब आप थोड़ा गौर करिए, तो यू नो दिस इज ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा सदर्न है, सदर्न हेमिस्फीयर, ओके, हेमिस्फीयर। अब आप समझिए, तो नॉर्थ से लाइंस ऑफ फोर्स निकल के, यानी कि ऐसे जाकर के सदर्न हेमिस्फीयर के इस पॉइंट से लाइंस ऑफ फोर्स निकल के, लाइंस ऑफ फोर्स कह रहा हूँ, फील्ड लाइंस आई शुड से, सदर्न हेमिस्फीयर से फील्ड लाइंस निकल करके और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के वहां पे फील्ड लाइंस जाके पहुंच रही है, और फिर अंदर अंदर आ जाएंगी। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप यहाँ पे कहीं पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस जगह पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये टेंजेंट थोड़ा खड़ा हुआ नजर आएगा, और ये जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे थोड़ा ऐसे होगा। तो जरा दोनों जगह टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि आप क्या समझ पा रहे हैं। दोनों जगह मैंने टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूँ, लेट्स सी आई एम ड्रॉइंग अ टेंजेंट ओवर हियर,
एक यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये टेंजेंट कुछ ऐसा उठा हुआ होगा। और अगर यहाँ पे कहीं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इस जगह पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, लेट्स सपोज आई ड्रॉ टेंजेंट हियर, तो ये टेंजेंट थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा, थोड़ा झुका हुआ होगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। ये अनवांटेड यहाँ आ गया था, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, सो व्हाट आई मीन टू से इज कि ये टेंजेंट देख रहे हैं, ये टेंजेंट यानी कि जो बंदा यहाँ पे खड़ा होगा, जो बंदा अ, इस जगह पे यानी कि धरती के इस पॉइंट पे होगा, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, नीचे से ऐसे उठती हुई जा रही है ना, यू आर फाइंडिंग लाइक दिस। और जो बंदा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे कहीं पे होगा, उसका टेंजेंट कैसे जा रहा है, यानी कि उसके हाइट से, यानी कि जो उसकी पोजीशन है वहां से नीचे की तरफ झुक रहा है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो थिंक ऑफ, एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, और एक बंदा यहाँ खड़ा है। इसके लिए जो मैग्नेटिक निडल होगा उसका साउथ की तरह आएगा, इधर की तरफ, और उसका नॉर्थ की तरफ जाएगा, इधर की तरफ। और जो बंदा यहाँ खड़ा है उसके लिए मैग्नेटिक निडल का क्या होगा, तो जरा अब ये तो टेंजेंट खींचा, और अब मैं हमें मैग्नेटिक निडल दिखा रहा हूँ। मेरा गौर करिए आप, यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक निडल लिया इस तरह, इस जगह के लिए, ये दिखाते हुए समथिंग लाइक, यानी कि जो बंदा यहाँ खड़ा उसके उसके नजरिए से दिखा रहा हूँ मैं, जो बंदा यहाँ खड़ा उसके नजरिए से दिखा रहा हूँ। तो फिर और इसका ये पोर्शन यूज किया इसके इस पार्ट के लिए, ये लाइक दिस। तो ये मैंने क्या दिखाने की कोशिश की कि देखो जी, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो मैग्नेटिक निडल का मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ इधर जा रहा है और ये साउथ है। तो जो बंदा इस जगह पे खड़ा होगा उसके लिए ये जो निडल होगी वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल से थोड़ा नीचे आएगी, या मतलब जो ये टेंजेंट आपने गोल राउंड सी कोई चीज है, आपने ऊन का गोला देखा होगा, ऊनी कपड़े जो ऊन जिससे माए बुनती हैं, या किसी भी गोला देखा होगा। तो जो आप ये टेंजेंट ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे तो ये टेंजेंट क्या होगा, अगर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल से किधर जाएगा, नीचे जाएगा। और अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल से क्या जाएगा, ऊपर। आप जरा यहाँ पे वो निडल ड्रॉ करते हैं जैसे ये यहाँ किया, तो यहाँ पे अगर ड्रॉ करेंगे तो देखो जी कैसे जाएगा। लुक एट दिस हियर, इस जगह पे ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाएगा। और देखिए क्या कर दिखा कैसे रहा हूं मैं, ये देखिए आप। सो आई एम, बीच से मैंने इसका नॉर्थ ऐसे दिखाया। तो व्हाट यू सी, यू सी दैट कि इस पोर्शन में मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ इधर आ गया और साउथ ऊपर चला गया। आई होप यू गॉट इट नाउ। यस, यहाँ पे अर्थ का देखो ये गलत हो गया, आई मीन वी शुड यूज समथिंग, ये थोड़ा गलत हो गया, एक मिनट, ये गलत हो गया बच्चे। या व्हाट आई मीन टू से इज, यहाँ पे ये जो पॉइंटर है ये ऊपर ऐसे दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये आ, उसका नॉर्थ पोल उधर चला गया, और यहाँ पे नॉर्थ, ये लाइंस ऑफ फोर्स कैसे जा रही है, यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकल रही है। ज्योग्राफिक यहाँ पे पता नहीं कि अर्थ का मैग्नेट का नॉर्थ है, तो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है, तो मैग्नेटिक निडल का साउथ ईस्ट की तरफ आएगा। तो दैट दिस इज हाउ वी हैव शोन इट हियर। नाउ जो बंदा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेगा उसका मैग्नेटिक, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में कोई बंदा एक्सपेरिमेंट करेगा और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेगा और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेगा, दोनों जगह एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए आप। तो लेट्स सी, आई एम ड्राइंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ। आप दोनों जगह क्या देख रहे हैं, बड़ी कमाल की चीज चेंज देखेंगे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से डिप करता हुआ नीचे की तरफ कौन डिप कर रहा है, काली वाली एरो ड्रॉप करी, यानी कि ये मैग्नेटिक नीडल का साउथ ड्रॉप कर रहा है। यस, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे कौन ड्रॉप कर रहा है, नॉर्थ वाली नीडल, नॉर्थ वाला साइड ड्रॉप कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम, और बिल्कुल बिल्कुल इक्वेटर पे रह के करते हैं, यानी कि जो ये लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकल के गई, अगर बिल्कुल इक्वेटर पे करते हैं यहाँ पे इस जगह पे, यानी कि ये तो मैंने थोड़ा इक्वेटर से ऊपर चला गया और थोड़ा इक्वेटर से नीचे ले लिया। अगर इक्वेटर पे लेके चलते हैं और आपने बताया कि ये लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकली है साउथ में एंटर की है, ये नॉर्थ से निकली है और साउथ में एंटर की है, तो इक्वेटर पे करते तो जो यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेगा वो टेंजेंट सीधा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस जगह पे अगर कोई, यानी कि अर्थ सरफेस के ऊपर यहाँ पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करेगा, इफ समबडी इज ड्राइंग टेंजेंट ओवर हियर,
देन व्हाट ही विल फाइंड दैट कि सीधा सीधा टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आएगा, यानी कि इस जगह पे अगर कोई निडल बनाए ऐसे, यानी कि यहाँ पे इस जगह, बिल्कुल इस जगह पे, तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। सो इसके पास तो भाई ये निडल कुछ है इस तरीके से अलाइन होगी, और ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग है। अब ये तीन चीजें मैंने जो ड्रॉ की हैं, इसको यूज कर रहा हूँ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को बहुत अच्छे से आपको समझाने के लिए। ये सारी बात समझ में आ जानी चाहिए अभी तक। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लुक एट दिस हियर। आपने देखा कि इक्वेटर पे, इक्वेटर पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर जो ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों का डायरेक्शन आई मीन एक ही होएगा। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वेटर पे ड्रॉ किया जाएगा वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ होगा। लेकिन इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किसी भी पॉइंट पे, यानी कि अर्थ सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट के डायरेक्शन में क्या होगा, नॉर्थ साइड होगा। टेंजेंट के डायरेक्शन में क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो टेंजेंट के डायरेक्शन में करेंगे तो हॉरिजॉन्टल से ये क्या होगा, यानी कि इस पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो हॉरिजॉन्टल से ये क्या होगा, डिप किया हुआ है। और यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल से ये नॉर्थ वाला साइड क्या ऊपर उठा हुआ है, लेकिन साउथ वाला किधर हुआ, डिप किया हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन, एंड हमने एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन पढ़ा है। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन पढ़ा है जो क्या बताता है, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज ओके। अब ये जो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे प्लान किया, अब ये ऐसे कह रहे हैं आप, सपोज कर लो कि मैग्नेटिक मेरिडियन, आई मीन कि ये जो निडल है, ये निडल यानी कि अर्थ के मैग्नेट के अर्थ के मैग्नेट के अर्थ के मैग्नेट के नॉर्थ पोल से लाइंस ऑफ फोर्स निकल करके, और अर्थ के मैग्नेट के साउथ पोल में अर्थ के मैग्नेट के नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, और अर्थ के मैग्नेट के साउथ पोल में फील्ड लाइंस एंटर की जा रही हैं। तो ये फील्ड लाइंस के ऊपर पे कहीं पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, देयर शुड बी नो डाउट। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर ये वाला फिगर जो हम लोगों ने पढ़ा है, ये वाला जो फिगर पढ़ा है यहाँ पे, भाई अगर ये बंदा कहीं पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये फील्ड ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसे दिखा रहा है इधर की तरफ, तो क्या ये एक्चुअली ऐसे दिखाई देगा, या अगर ये तो अभी बाउंड था ना, ये हॉरिजॉन्टली फ्री था, ये कैसे घूम सकता था, हॉरिजॉन्टली फ्री कर सकता था। यहाँ पे भी मैंने क्या बोला था, अपने हाथ पे एक निडल मैग्नेटिक कंपास रखे, उसकी निडल ऐसे जानी है। लेकिन अगर इस जगह पे सबसे पहले जो मैंने आपको ये बात दिखाई थी, इफ यू रिमेम्बर दिस वन, इफ यू टेक दिस, यानी कि निडल को वर्टिकली घूमने के लिए फ्रीडम हो, वर्टिकल डायरेक्शन में घूमने का फ्रीडम हो, ये वाला मैग्नेटिक, ये वाला अगर हम कंपास लेके चले कहीं पे, तो क्या होगा। नाउ लुक एट दिस हियर। अब हम या सो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में हम ये कहेंगे, इतनी पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ और फिर आपको समझा रहा हूँ। इट इज द इट इज द एंगल इट इज द एंगल मेड बाय इट इज द एंगल मेड बाय so it is the angle made by it is the angle made by resultant resultant magnetic it is the angle made by resultant magnetic field. It is the angle made by resultant magnetic field of earth's magnet with horizontal of horizontal of horizontal of magnetic meridian. It is the angle made by resultant It is angle made by resultant magnetic field of Earth's magnet with horizontal of magnetic meridian. किसी भी जगह पे किसी भी जगह पे आप you take any place and वहां पे आप अब जो सिचुएशन बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना है, अगले पेज पे ले जाके। सपोज कर लो आप यू आर एट सम प्लेस इस जगह पे कहीं पे खड़े हैं आप, दिखा रहा हूँ, लुक एट दिस हियर। मैंने जैसे कि ये पीछे रेफरेंस लिया था, सपोज करो यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ये इधर से सन निकल रहा है, सो दिस इज ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो ये आपको पता है कि ज्योग्राफिक ईस्ट है, ये ज्योग्राफिक वेस्ट है, ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ज्योग्राफिक साउथ है, ये इसी को हम लोग ट्रू नॉर्थ भी कहते हैं, ट्रू नॉर्थ कहते हैं हम लोग यहाँ पे।
एंड अब अगर यहाँ पे कोई बंदा कंपास रखता है और ही फाइंड्स दैट कि कंपास की जो निडल है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ ना होकर के थोड़ा इधर की तरफ जा रही है, सो दिस इज थीटा, दिस थीटा इज लाइक पता है कि ये इधर की तरफ हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है, यानी कि दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा निडल उधर की तरफ गया है और दिस एंगल इज थीटा। इसको हम लोग एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कहते हैं। इधर ओके ना? सो अब ये जो येलो वाली लाइन है और ये जो पिंक वाली लाइन है, तो मैंने पिंक वाली लाइन से एक प्लेन बनाया, वर्टिकल प्लेन। आपको पता है इसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे, और ये येलो वाले से जो आपने बनाया है वो उसको ज्योग्राफिक मेरिडियन कहेंगे। ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का ये एंगल थीटा है, दिस एंगल थीटा, दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ, दिस थीटा इज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ओके, नाउ आप ये देखेंगे कि अगर एक ऐसा कंपास, अभी जो कंपास था वो तो सिर्फ हॉरिजॉन्टली घूम सकता था, अब आपने कंपास यहाँ पे ऐसा रख दिया, ऐसा वाला कंपास यूज किया जिसमें निडल क्या हो सकती है, वर्टिकली घूम सकती है। तब उस केस में हम ये देखते हैं कि जो निडल का जो नॉर्थ पोल है वो नीचे की तरफ डिप कर गई है। कहाँ से? मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल से, मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल से दिस, ये ग्रीन वाली जो दिख रहा है, इस ग्रीन वाले को हम लेट सपोज दिस इज डेल्टा या लेमडा जो भी लिख कह रहे हैं, ये डेल्टा एंगल क्या हो गया, डिप कर चुका हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से ये डेल्टा डिप कर चुका है। और ये हमारा क्या है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जिस जगह पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आई टोल्ड यू दैट कि अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रख के कहीं एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपका जो निडल का जो नॉर्थ पोल है वो हॉरिजॉन्टल से डिप करेगा, और अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर करोगे तो जो जो निडल का जो साउथ पोल है वो हॉरिजॉन्टल से डिप करता हुआ नजर आएगा। So that is what we are seeing. Let's suppose we are in northern hemisphere. You know, India is in northern hemisphere. तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो हमने जो हम लोग जो ये दिखाते हैं ये हम लोग अपने हेमिस्फीयर में दिखाते हैं। सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज कि ये जो सिचुएशन है कि हमारा जो यहाँ पे अगर जो यहाँ पे जो निडल होएगी, उस निडल का जो नॉर्थ पोल होएगा नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब कि हम जिस जगह पे एक्सपेरिमेंट करें, जिस जगह पे एक्सपेरिमेंट करें, अर्थ के जिस पॉइंट पे रह के एक्सपेरिमेंट करें, हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने मतलब अर्थ के अर्थ का जो जहाँ पे नॉर्थ पोल है, अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, वहां से लाइन से फोर्स निकल के जब आ रही है, तो हम जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे टेंजेंट कैसे है, हॉरिजॉन्टल से थोड़ा डिप करता हुआ है। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, और वो मैग्नेटिक फील्ड हम वहां पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं उससे वो इतने एंगल बना करके नीचे की तरफ है। दिस एंगल इज कॉल्ड, यानी कि इतने एंगल से वो डिप कर गया, झुक गया है, दिस इज कॉल्ड डीप एंगल। So what the definition we said? It is the angle made by resultant magnetic field of Earth's magnet with horizontal of magnetic meridian. तो हॉरिजॉन्टल ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है मैग्नेटिक मेरिडियन का, उसके साथ जो ये एंगल बनाया है डेल्टा, दिस डेल्टा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डी। दिस डेल्टा इज एंगल ऑफ डी, दिस इज योर एंगल ऑफ डी। सो इस तरीके से, यानी कि हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्ट, अर्थ का मैग्नेट का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से इतना नीचे है। अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में किसी पॉइंट पे काम कर रहे होते तो ये बिल्कुल पॉइंटर, ये नॉर्थ वाला इधर होता है, साउथ वाला नीचे होता है, तो हम ये कहते हैं कि भाई वो यहाँ से इतना एंगल ऊपर चला गया और ये यहाँ से सदर्न एंगल में इतना एंगल नीचे डीप दिखाई दे रहा है। तो हम लोग पता होता है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और ये इतना नीचे की तरफ है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। सो वी आर इनटू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, फ्रैंकली स्पीकिंग वी नो वी आर इन द नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यानी अर्थ को अगर नॉर्थ और ईस्ट, आई मीन साउथ और नॉर्थ हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं तो वी नो इट इज वी आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बट अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करें तो वी आर इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हम लोग जहाँ पे हैं हमारे लिए जो नॉर्थ पोल है वो हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ डिप करके आती है, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डीप। और इसी एंगल ऑफ डीप को हम लोग एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। सो एक तरीके से ये डीप है और एक तरीके से यहाँ से ये कितना एंगल चढ़ा हुआ है, इसको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी कहा जाता है। सो दिस इज एंगल ऑफ डीप या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो एक तरीके से एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या चीज है, एंड इसी को ऑल्सो नोन एज ऑल्सो नोन एज एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप।
तो ये सब जो कुछ हमने पढ़ा, इसका हमारे को एडवांटेज क्या है भाई? लाइक तो अब जरा ये जो फिगर बना करके आपको दिखाया गया है, इसको जरा अगले पेज पे ले जा करके, यानी कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम आपको और अच्छे से दिखाते हैं और फिगर बना करके दिखा रहे हैं फॉर अ व्हाइल। सो नाउ लुक एट दिस। अब अगर हम यहाँ पे जैसा कि हमने पीछे दिखाया था, ये पिंक वाला मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है हमारा। और इस मैग्नेटिक मेरिडियन में हमने क्या देखा कि निडल जो है, मैग्नेटिक मेरिडियन जो वर्टिकल प्लेन है उसको हॉरिजॉन्टल से मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी लिखने का मतलब क्या हुआ? अर्थ के मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ के मैग्नेट का जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो इससे कितना एंगल बना करके नीचे है? डेल्टा नीचे है। सो दिस डेल्टा इज द एंगल ऑफ डीप। अब देखो, अगर आपको ये डेल्टा मालूम हो गया तो बी का जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के अलोंग आएगा और बी का जो कंपोनेंट वर्टिकल के अलोंग आएगा, सो दिस बी एच इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज बी कॉस डेल्टा। एंड दिस वी वी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? बी साइन डेल्टा। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, बी एच को एच लिख देते हैं और वी वी को वी लिख लेते हैं। दिस इज हाउ डू दे राइट। सो अब हमें अर्थ के मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ के मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें पता है और ये एंगल हमें पता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल पे है, जिन जगहों पे आई सेड दैट ये एंगल ऑफ डीप है। और ये जो डेल्टा है, दिस डेल्टा इज डेल्टा एट इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर के पॉइंट्स पे डेल्टा एट इक्वेटर इज 0 डिग्री। डेल्टा एट इक्वेटर क्या होगा? 0 डिग्री। और एट पोल अगर आप चले जाएंगे तो दिस विल बिकम 90 डिग्री। क्या मतलब है इस बात का? तो ये मैं आपको समझा ही रहा था कि अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं तो आप ये पता है कि ये हॉरिजॉन्टल से ऐसे डिप कर रहा है, यहाँ ऐसे ये इधर की तरफ डिप कर रहा है, तो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में आपको डेल्टा मिल रहा है। बट इक्वेटर पे जा रहे हैं तो सीधा सीधा अर्थ के मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? सीधा हॉरिजॉन्टल है। तो भाई वहां पे तो निडल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग रहेगी, तो हॉरिजॉन्टल से तो डिप होएगी नहीं, इसलिए डेल्टा क्या होगा? 0 हो जाएगा। एंड इफ यू गो टू द साउथ एंड नॉर्थ पोल, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये लाइन, फील्ड लाइन सीधे ऐसे की तरफ आती है, तो अगर आप पोल पे जाएंगे तो वो सीधा सीधा यहाँ पे क्या है? अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है, तो नॉर्थ वाली नीडल सीधे आएगी। तो यहाँ जो मैग्नेटिक मेरिडियन बनाएंगे आप, तो उस मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो एंगल ऑफ डिप होगा वो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। यहाँ भी 90 डिग्री होगा और यहाँ भी 90 डिग्री होगा। सो आई होप यू गॉट इट नाउ। सो दिस जो डेल्टा है, एंगल ऑफ डीप है, दिस डेल्टा एंगल ऑफ डीप है या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। एट इक्वेटर इट इज 0 डिग्री, एट इक्वेटर इट इज 0 डिग्री, और एट पोल इज 90 डिग्री। तो ये इंफॉर्मेशन हमने देख लिया कि इनके डेल्टा वेरीज किसके किसके बीच में करता है। दिस डेल्टा वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हमारा ये डेल्टा वेरी करेगा। दिस इज अर्थ के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे चले जाए, दिस इज हाउ इट वेरीज। अब क्या, इफ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड अर्थ के मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? लुक एट दिस हियर। पहले बी साइन डेल्टा, बी साइन डेल्टा अपॉन बी कॉस डेल्टा की अगर बात करें, दिस इज कमिंग आउट हाउ मच? टेन ऑफ डेल्टा। दिस टेन ऑफ डेल्टा, और व्हाट इज दिस? दैट इज v अपॉन h। सो दिस इज नाउ 10 ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 10 ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू v अपॉन h। तो अगर आपको वर्टिकल कंपोनेंट मालूम है एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम है अर्थ के मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ के मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट मालूम है, यानी कि दिस 10 डेल्टा इज इक्वल टू bv अपॉन bh, ऐसे भी लिख लो। सो अगर आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मालूम है तो भी आप ये डेल्टा निकाल सकते हैं। यू कैन फाइंड एंगल ऑफ डिप फ्रॉम दिस साइड। नाउ द पॉइंट इज कि ये bh और vv मालूम कैसे होगा? हाउ दिस bh एंड vv विल बी ऑब्टेन्ड? Okay, that is something, that is what we need to talk about. And from here one more thing कि अगर आप h square और v square करोगे, if you look at this h square plus v square, अगर आपको ये मालूम है तो this will come out b square, यानी कि b can be found out by knowing this h square plus v square। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मालूम है तो एंगल ऑफ डिप भी निकाल सकते हैं आप, एंड साथ साथ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बट हाउ विल यू कम टू नो अबाउट बी एच और वी? तो बी एच और वी निकाला कैसे जाएगा? तो बी एच निकालने का तरीका हमारे को है न्यूट्रल पॉइंट से। कहाँ से निकालते हैं हम लोग? बी एच निकालते हैं न्यूट्रल पॉइंट से। अगर न्यूट्रल पॉइंट के मेथड से हम बी एच निकाल लेते हैं
एंड सपोज कर लो कि अगर आपको BH पता है एंड डेल्टा पता है, तो डेल्टा और BH के मालूम होने से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो ना यहाँ से, लाइक सिंस BH इज इक्वल टू व्हाट, B cos delta. So if you know this B can be written as BH upon cos delta. So I would like to tell you that कि अलग अलग जगह पे अर्थ के अर्थ के सरफेस पे अलग अलग जगह पे इस डेल्टा को निकालने के लिए हम लोग डीप सर्कल का इस्तेमाल करते हैं. व्हाट डू वी डू? डीप सर्कल का इस्तेमाल करते हैं, और डीप सर्कल इसी मेथड पे काम करता है. डीप सर्कल इसी तरीके से यूज करते हैं, लाइक हमने जैसे यहाँ पे यूज किया कि सीधा सीधा एक हॉरिजॉन्टल कंपास, आई मीन एक कंपास होगा जो हॉरिजॉन्टल लाइन में लाइन करेगा, इससे हमें पता चल जाएगा. फिर क्या करेंगे वहां पे जो उस कंपास उस हमें ये डायरेक्शन मालूम होगा, फिर हम एक कंपास हमारे पास वर्टिकल फ्रेम में मूव करने के लिए फ्री होगा, तो उसको उसी प्लेन में मैग्नेटिक मेरिडियन में ले जाकर रख देते हैं. और फिर वो हमें वहां पे कंपास जो है जितना एंगल डिप करता है हॉरिजॉन्टल से, उससे हम लोग डीपर हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल डिप करता है उससे हम लोग मेजर कर लेते हैं. वी कैन काउंट इट आउट फ्रॉम देयर एंड उससे डीप एंगल निकाल लेते हैं. तो डीप एंगल तो डीप सर्कल से पता चल जाता है. सो H कैन बी दैट BH या H जो है, दिस कैन बी फाउंड फ्रॉम द न्यूट्रल पॉइंट मेथड. और न्यूट्रल पॉइंट मेथड से अगर हम BH निकाल लेते हैं, तो भाई बाय नोइंग दिस B इज इक्वल टू BH अपॉन कॉस डेल्टा, डेल्टा मालूम है BH मालूम है, तो उससे आप B निकाल सकते हैं. तो मैं ये चाहूंगा कि आज का ये लेक्चर यहीं पे खत्म किया जाए, और न्यूट्रल पॉइंट और वो जो पॉइंट आई मीन जो फर्स्ट पेज पे दे रखा है, राइट, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, दिस लाइक ये तो हमने पढ़ लिया. अब न्यूट्रल पॉइंट और हाउ टू ऑब्टेन दिस, अगर इसको और इन दोनों को अगर हम पढ़ने की कोशिश करें अभी, तो ये लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा. तो मुझे लगता है कि इसको आज यहीं पे खत्म कर देना ज्यादा अच्छा रहेगा. तो अगला एक लेक्चर बनाएंगे हम लोग न्यूट्रल पॉइंट का, और फिर उसको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ कनेक्ट करते हुए पढ़ा लेंगे. तो यहाँ तक हम लोग ने एंगल ऑफ डीप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तक हम लोगों ने पढ़ लिया है. अगले लेक्चर में हम न्यूट्रल पॉइंट और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. वो लेक्चर बहुत छोटा होगा और उसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होगा अर्थ मैग्नेटिज्म का. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप प्रमोटिंग. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय. थैंक यू वेरी मच.